Hi Palash, how are you? Hey, hi Katish, I'm good. How are you? Good, good, good. So, hello students, everyone. Welcome to the second podcast series video. Uh, Today with us, Palash is joining. He is right now in Pune. Palash is a IIT Bombay graduate, 2012, right? 2012 batch pass out, or you were also 2013, okay? 13. Okay, Yeah. 2013 batch pass out, and you had a dual degree, right? Yeah. स्कूल सो वील टॉक अबाउट डुअल डिग्री. हम अपने स्टूडेंट्स को भी बताना चाहेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है. एंड वेलकम अगेन पलाश, है ना. एंड लेट्स टेक Thanks a lot, Katish. Yeah. awesome. Cool. So I will be sharing the screen, Palash, so that the when we talk, we also go ahead and write things on the notepad so that our students can view it and make a note out of it in case if it is Sure. Sure. cool. Awesome. So yes, Palash Jhavak, awesome rank of 222 in IIT JEE, and that was in 2008, right? Right. Cool. AI Triple E उस time पे 796, that was outstanding, I believe. What was your state rank also? क्योंकि वो भी बहुत अच्छा होगा. I don't remember my Okay, cool, state rank. awesome. Yeah. But so right now अब JEE AI Triple E change होके इसे अब JEE main कहते हैं, है ना? But Right. Right. I think the students can be able to relate to you. And you got into IIT Bombay, right? Electrical engineer. Correct. And yours was a dual degree course. So basically, Dual degree in okay, microelectronics, but then later I changed it to communication and signal processing. So okay, there are two dual degree specializations in IIT Bombay: okay, microelectronics and communication and signal processing. okay. Communication and signal processing will be your master's, right? Yes. Awesome. So I entered with microelectronics as my specialization, but third year में मैंने change कर दिया था मतलब interest के साथ. Cool. Awesome. Cool. So basically, I will guide you plus कि ये complete जो podcast series है, ये हम अपने students के लिए बना रहे हैं जो जनरली जब भी आईआईटी या फिर जब लोग 12th में जाते हैं, देन दे स्टार्ट थिंकिंग कि how they are actually going to go ahead and which forms to fill, which form they should Right. है ना decide कि किस कॉलेज में जाना है, अगर इस कॉलेज में जा रहे हैं which branch to choose from, है ना. So बिल्कुल. this series is more about how your preparation started, किस तरीके से you prepared, you went through the journey, got selected into IIT. How was your campus placements? How was your college life? And वहां से निकलने के बाद after college, what did you do? How was your career path and where are you right now? Sure. Okay, Sure. cool then. So Palash, would you like to tell us about what was your journey? How did you prepare, and when you thought about okay, I have to give IIT JEE, or when you even decided that okay, I will go into IIT? हाँ, तो वो थोड़ा सा काफी कोइंसिडेंटल है. सो Okay, मेरा होम टाउन है छत्तीसगढ़ में, एक okay, टाउन है महासमुंद करके, राइट. okay, तो 9-10th की बात है, मतलब कुछ आइडिया बिल्कुल भी नहीं था आईआईटी क्या okay. होता है Correct, या इंजीनियरिंग क्या होता है फॉर दैट मैटर. ठीक है. correct. बट एक दिन आई थिंक पेपर में फिटजी का ऐड आया हुआ था. तो Okay, ये 9-10th क्लास की बात है. तो okay, थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ कि क्या है, क्यों है, मतलब कोचिंग का ऐड था. तो एक दो सीनियर से मैंने पूछा कि क्या होता है एग्जैक्टली. तब उन्होंने थोड़ा डिटेल में बताया कि अगर आपको okay, मैथ्स में इंटरेस्ट है तो एक तो आप रेगुलर मैथ्स, थियोरेटिकल मैथ्स में जा सकते हो, बीएससी एमएससी करके. correct. उसमें आप रिसर्च में जा सकते हो. दूसरा ऑप्शन है, और जो ज्यादा ऑब्वियस या ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं, वो इंजीनियरिंग. और फिर Correct, इंजीनियरिंग में वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन इंडिया इज एनी ऑफ द correct, आईआईटी. बट देन उसके साथ वो भी बताया कि ये बहुत टफ है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम टू क्रैक एक्सेट्रा. correct, correct. तो वो थोड़ा आइडिया 10th क्लास में आई थिंक लगा, 9th भी नहीं, 10th क्लास में. Okay, ठीक है. तो बट जैसे जैसे 10th फिर मतलब 10th का बोर्ड आने लगा, तब थोड़ा और डिटेल उसके बारे में पता किया कि भाई अब नाउ बोर्ड्स आर कमिंग और उसके बाद कुछ ना कुछ ज्वाइन करना है. तो okay, फिर उसके बाद पहले जो महासमुंद से नियरेस्ट बिग सिटी इज रायपुर. okay, रायपुर एंड देन भिलाई. okay, तो भिलाई में काफी लोग आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करने जाते हैं ऑन अ okay, रेगुलर बेसिस. एंड देयर आर सम गुड सेंटर्स okay, जहां से बच्चे निकलते हैं.
ठीक है, तो एक ऑप्शन वो था कि भिलाई में जाके आगे 11-12 एंड IIT जाके कोचिंग कर सकते हैं। ओके दूसरा ऑप्शन मेरे घर के पास विशाखापट्टनम में, अराउंड 10 आवर्स की जर्नी थी, ठीक है। वाइजैक, तो वो वाइजैक वो एक ऑप्शन था, और थर्ड कोटा और दिल्ली तो है ही, मतलब जो बेस्ट कोटा जो इंडिया में फेमस है। तब तक ये मालूम चल गया था कि कोटा में मोर और लेस लोग जाते हैं, ठीक है। करेक्ट, सो बट कोटा वाज वेरी फार एंड ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, ओके, ठीक है। मतलब क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, और वो एक अच्छा खासा एक्सपेंडिचर था अगर कोटा जाते हैं तो। ओके, तो एज अ फैमिली वी डिसाइडेड कि विशाखापट्टनम इज द बेस्ट ऑप्शन। एकदम घर के पास भी नहीं है, जैसे भिलाई क्या होता है घर के पास होता है, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा तो होते हैं। हाँ, हाँ, आप फैमिली वीकेंड में मैटर्स में मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं, करेक्ट करेक्ट एग्जैक्टली फैमिली मैटर्स में वीकेंड में घर आ जाओ, घर से कोई करेक्ट आ रहा है, तो करेक्ट, वो सब चीजें अवॉइड करने के लिए विशाखापट्टनम चूज किया। और वहां पे ओके मेरी एक कजन सिस्टर रहती है, ओके, कूल, ठीक है। तो उन्होंने काफी सपोर्ट किया, पहले हम लोग गए वहां पे, देखे इंस्टीट्यूशंस, उनके यहाँ रहे, तो उन्होंने काफी हेल्प किया, उनके थ्रू काफी आइडिया लगा, और वो जीजा जी ने काफी कुछ पता करके रखा था। तो ओके। दैट इज हाउ आई वेंट टू विशाखापट्टनम फॉर IIT तो JEE इन वाइजैक प्रिपरेशन। का आपने कौन सा इंस्टीट्यूट में गए थे प्रिपरेशन के लिए? हाँ, तो वाइजैक में 2-3 प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस थे उस टाइम। ओके एक श्री चैतन्य करके है, और एक ओके नारायणा करके था, आई थिंक। ओके तो ये दो इंस्टीट्यूशंस उस टाइम में मेन थे, जिसमें से बच्चे IIT क्रैक करते थे। ओके तो मैंने श्री चैतन्य प्रेफर किया, क्योंकि वहां पे मेरे को स्कॉलरशिप मिल रही थी। ओके ओके। तो हाँ, अगेन 10th दिस क्लास इज के यू आर मार्क्स के टॉकिंग बेसिस अबाउट में। 2006 है ना, जब मतलब आपने 2000 2005 2005, 2005 या ओके तो 10th 2005 में क्लियर किया था मैंने, और ओके 10th के मार्क्स के बेसिस में दे हैड सर्टेन स्कॉलरशिप्स, ओके, सो इसलिए श्री चैतन्य प्रेफर किया मैंने। हाँ, ऑसम, ओके, 10th के मार्क्स पे यू गॉट सम स्कॉलरशिप है, राइट? ओके, यस यस यस। cool. So basically from Sri Chaitanya you prepared for 2 years, and यस, okay, so first time में how much the rank you got, and did you तो decide? मेरा फर्स्ट, हाँ, फर्स्ट टाइम में मेरा रैंक आया था IIT में 4400 समथिंग, Okay, ठीक है। 4400 something, okay, cool, हाँ, और AI EEE में भी सिमिलर रैंक था, 4600 या 4200, ऐसा कुछ एग्जैक्ट याद नहीं, बट इन द सिमिलर रेंज। okay, तो मेरे को IIT में मिला था, IIT BHU में माइनिंग, okay, और AI EEE में मिला था NIT वारंगल में केमिकल, हाँ, okay, ठीक है। so तो हाँ, NIT Warangal you were getting, huh? Nice, that's या a good NIT college. वारंगल में आई वाज गया। सो NITs में आई थिंक त्रिची एंड वारंगल आर On the वन ऑफ द top, बेस्ट कॉलेजेस correct NITs correct. में। हाँ, तो Warangal तो में what you केमिकल were मिल रहा getting? था, Chemical, huh? Okay, केमिकल, यस, okay, ठीक है। hmm. तो वो मिल रहा था, एंड आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू जॉइन NIT वारंगल केमिकल, Okay, एंड प्लान ये था कि आई जॉइन NIT वारंगल, एंड वहां से नेक्स्ट ईयर फिर आई गिव IIT JEE थोड़ा okay, प्रिपेयर करके। hmm. तो मेरे होम टाउन के एक भैया थे जो IIT कानपुर में पढ़ते थे उस टाइम, Okay, राइट। तो मैंने उनको अपना प्लान बताया, उनसे डिस्कस किया, और मतलब पहले भी उन्होंने काफी सपोर्ट किया था। सो okay, ही वाज आई थिंक द फर्स्ट IITian फ्रॉम माय होम टाउन, हाँ, उनका नाम है कौस्तुभ सिंघल, है okay, ना। तो उनसे बुक्स ली थी काफी मैंने, उनसे जनरल गाइडेंस लिया था कैसे प्रिपेयर करना है। okay, तो उन्होंने बोला कि देयर आर टू थिंग्स, आइदर यू correct, डिसाइड एंड ज्वाइन, ठीक है, एंड देन correct, डोंट थिंक अबाउट IIT, और टेक अ ब्रेक, 1 ईयर ब्रेक, एंड देन okay, प्रिपेयर, फिर नेक्स्ट ईयर वापस दे दो। वो hmm. हाइब्रिड वाली चीजें मत करो कि ज्वाइन कर भी लो Okay, और फिर प्रिपेयर करने का बस। उससे दो तरीके से नुकसान होगा, क्योंकि आप NIT में जाके भी फर्स्ट ईयर अपना उस तरीके से बर्बाद कर एंजॉय लो, नहीं कर पाओगे, करेक्ट, उस तरीके से। ट्रू, हाँ, उस तरीके से आप जो एक वो होता है ना, फर्स्ट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है करेक्ट एकेडमिक्स करेक्ट, पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मतलब आपके फ्रेंड्स बनते हैं, फ्रेंड्स आप बनते हैं, एक्स्ट्रा करेक्ट, करिकुलर ट्रू, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी आप नहीं कर पाओगे अच्छे से, और आप IIT की प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं कर पाओगे। इट्स लाइक दो नाव में एक साथ पैर रखने वाली चीज हो जाएगी। पैरेंट, ओके, गॉट इट, तो उन्होंने बोला या तो डिसाइड कर लो NIT जाना है, और फिर पूरा फोकस वहां करो, या तो ओके एक साल ब्रेक ले लो और ड्रॉप ले लो, और पूरा ओके, फोकस IIT में करो। तो गॉट इट, वो काफी एक टर्निंग पॉइंट सॉर्ट ऑफ था। तो मैं घर आया, और घर में बोला कि नहीं, अब मेरे को ब्रेक लेके, हाँ, मतलब वाओ, लिटरली एक बहुत यूफोरिया मोमेंट था। मतलब बट मैं साइबर कैफे में बैठा था। हाँ, लेकिन 4400 पे जब आपने घर पे ये अनाउंस किया होगा कि आई मीन हाँ IIT मिल रहा है, एंड यू आर थिंकिंग कि हाँ ओके आई डोंट वांट टू गो इनटू IIT, है ना, जनरली ये हाँ, तो डिसीजन थोड़ा सा इजियर हो जाता है जब रैंक 6000 7000 के अराउंड होता है, बट 4400 इज समथिंग राइट, स्टिल डिसेंट, राइट?
राइट, मतलब बिल्कुल सही, मतलब घर में सब शौक थे, और नॉट ओनली घर में, जो और भी जानकार लोग हैं जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं इंजीनियरिंग या आईआईटी या एनआईटी, तो उन लोग भी शौक थे, उनका भी ये सजेशन था कि मत लो ड्रॉप नेक्स्ट ईयर, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, अभी आपकी करेक्ट रैंक तो आई है कम से कम, बहुत लोगों करेक्ट की रैंक नहीं आती है। करेक्ट। बट देन वो भैया से बात करके काफी कॉन्फिडेंस मिला, और ये समझ में आया कि अगर हुआ है इस बार तो हमारी मेहनत से हुआ है, कोई लक या तुक्के से नहीं हुआ है। तो करेक्ट। नेक्स्ट ईयर भी, मतलब अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा ड्रास्टिक सिचुएशन हो जाए, बट मतलब वैसा, लेकिन होगा ही होगा अगर करेक्ट। मेहनत करेंगे तो। ट्रू। तो वो कॉन्फिडेंस था, तो घर में बोला, और घर वाओ। वालों ने काफी सपोर्ट किया, स्पेशली मम्मी ने काफी सपोर्ट किया, और फिर 1 साल ड्रॉप लेके कोटा में क्या इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब पता करके, ओके वहां पे भी, वहां की भी स्टोरी है काफी कुछ, मतलब आई वाज ऑलरेडी लेट, कोटा में क्लासेस चालू हो चुकी थी। ओके ठीक है, तो मेरे 2-3 फ्रेंड्स थे। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे, सॉरी। ओके। तो बेसिकली आपने ट्रांजिशन किया फ्रॉम वाइजैक टू कोटा फॉर द रिपीट ईयर, राइट? नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट यस, करना। यस, ओके नाइस। यस, यस। तो उसकी उसकी भी एक्चुअल में स्टोरी है। तो मेरे जो कुछ वाइजैक वाले फ्रेंड्स थे जो ऑलरेडी कोटा जा चुके थे, ओके ठीक है, तो 2-3 मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, सिद्ध, अर्पित वगैरह, तो ओके। मैंने उनको कॉल किया कि उनसे समझा कि क्या सिस्टम है। तो उन्होंने पूरा सिस्टम बताया, और यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, कोटा और वाइजैक का सिस्टम ड्रास्टिकली अपोजिट है। ओके वाइजैक में क्या होता है, आप इंस्टीट्यूशन में जाओ एंड दे विल मैनेज एवरीथिंग, योर ओके। हॉस्टल, योर फूड, ओके। योर लिविंग एंड एवरीथिंग। हाँ। कोटा में डिफरेंट होता है, आप इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले लो, एंड देन फिर आपको खुद का हॉस्टल देखना है या पीजी देखना है, आपकी मेस का आपको चीजें देखनी है, आपका करेक्ट कम्यूट का देखना है, सब कुछ। वाइजैक में एक बिल्डिंग होती है, नीचे आपके क्लासरूम्स होते हैं फर्स्ट फ्लोर में, और ऊपर आपके हॉस्टल्स होते हैं, सो यू डोंट रियली हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। हाँ। डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट प्लेसेस। एग्जैक्टली, बुक्स बात है। वगैरह भी वो सब कुछ वो ही देते हैं। अच्छा। बट यहाँ पे आपको सब कुछ खुद से करनी थी, तो वो एक चैलेंज था, क्योंकि ऑलरेडी टाइम निकल चुका था, वहां पे क्लासेस चालू हो चुकी थी। आई थिंक ये तो भी वो एक जो मेरे, रीजन है। हाँ, आई थिंक ये भी एक रीजन है कोटा को एक्सपेंसिव होने का, बिकॉज आपको अलग से करेक्ट, अपना हॉस्टल करेक्ट, देखना है, मेस देखना है, सब कुछ। आपको पता नहीं राइट, है कि अगर आपके पास राइट, ऑप्शंस कम होते हैं तो इट्स ऑलवेज चीपर। ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं, देन यू स्टार्ट करेक्ट, कॉन्टेम्पलेटिंग कि यार ये करे वो करे, ये मेस नहीं करेक्ट। अच्छा लग रहा है, वो मेस अच्छा लग रहा है, राइट? करेक्ट बात है। श्योर, 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 श्योर। तो वो फिर वो फ्रेंड लोगों ने काफी हेल्प करी, उन्होंने एक हॉस्टल पता करके अच्छा सा हॉस्टल मेरे लिए रिजर्व कर ओके लिया था। ओके और रेजोनेंस में मैंने बात करी थी, तो ओके। रेजोनेंस में स्कॉलरशिप थी, अगर आप वाओ। ऑलरेडी आईआईटी जेईई क्वालिफाइड हैं तो ओके। आपके लिए 90% तक दे वाओ। हैड ट्यूशन फी वेवर। हाँ, तो वो एक बहुत अच्छा चीज हो गया था कि खाली 10% फीस मेरे को लग रही थी रेजोनेंस में। वाओ। तो वो, हाँ, तो वो एक अच्छा बर्डन समझ लो, इकोनॉमिकली वो हट जाता है। आपको ओके खाली रहने का और मैस का आपको यू हैव टू टेक केयर, बाकी ओके। फीस रेजोनेंस में खाली 10% लगने वाली थी, राइट। तो वो एक अच्छा हेल्प हो गया, तो मैं डायरेक्टली गया वहां पर, और मतलब ऑलमोस्ट ट्रेन छूटते छूटते बची थी मेरी, तो ओके समहाउ ट्रेन कैच करी, ट्रेन वहां से ट्रेन लिया, और डायरेक्टली हॉस्टल मेरे फ्रेंड्स लोगों ने बुक कर लिया था, तो ओके और रेजोनेंस में जाके उनसे पहले से बात कर रखी थी, तो वो सॉर्ट आउट हो गया अच्छे ओके। से। नाइस। सो यू तो वैसे, हाँ, तो अच्छा, आप रिपीट किए होंगे तो इन विच बैच यू हैं? R1, मतलब इतने अच्छा रैंक होगा हाँ, तो यू गेट बैचेस। रेजोनेंस में रिपीटर्स के दो बैच होती है, करेक्ट। एक तो होती है जो ऑलरेडी पहले रेजोनेंस में पढ़ रहे थे, और हाँ। एक होती है जो रेजोनेंस में अभी आए हैं, तो वो अभी है। R1 मेरी बैच थी, राइट, राइट। वाह ऑसम। सो यहाँ तो से देन एक्चुअली द रीजन इज आई वाज आल्सो स्टडीइंग एट दैट सेम टाइम इन रेजोनेंस, है ना? और हम राइट, 11 राइट, 12th वाले बैच में थे, एंड आई वाज इन P1, है ना? राइट। है ना? इट सीम्स लाइक हम लोग उस टाइम पे भी मिल सकते थे बट बिल्कुल, बिल्कुल, काइंड ऑफ बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, बट नो वरीज। तो फिर बिल्कुल। R1 से और आपका जर्नी कंप्लीट हुआ, एंड देन यू, तो आपने किस किस का फॉर्म भरा था यहाँ पे जब एग्जाम टाइम नजदीक आ रहा था तो? हाँ, तो मैं एक्चुअली अपने 12th ईयर में भी मैंने आईआईटी, एआई ट्रिपल ई, मैंने स्टेट पीईटी का फॉर्म भरा था, अपने छत्तीसगढ़ ओके स्टेट पीईटी का। ओके मैंने कॉमेड के का भरा था फर्स्ट टाइम में, ओके और उसके अलावा मणिपाल मैंने फर्स्ट टाइम नहीं भरा था, क्योंकि मणिपाल की ओके फीस आई थिंक बहुत ज्यादा थी, तो मैंने उसको उस टाइम प्रेफर नहीं किया था। ओके। आई थिंक, हाँ, बीट बिट्स से ही पिलानी। फॉर्म भरे थे शायद। बिट्स पिलानी। हाँ, सॉरी, ऑफ कोर्स, ओके बिट्स पिलानी भरा था, यस। तो बिट्स नाइस। पिलानी भरा था। बस इतना इतना ही फॉर्म भरा था शुरू फर्स्ट ईयर में, और 12th सेकंड ईयर टाइम? में। सेकेंड टाइम में भी आईआईटी, एआई ट्रिपल बिट्स पिलानी,
कॉमेट के भरा था, लेकिन फिर कॉमेट के तक मेरे आईआईटी का रिजल्ट आ गया था, तो उसकी शायद जरूरत नहीं पड़ी थी। और हाँ, एक दो और फॉर्म्स भरे थे, बट तब तक आई थिंक AIEEE आईआईटी में से एक का रिजल्ट आ चुका, तो और जब आपका रैंक तो हो जाना 222 आएगा तो फिर आप क्यों ही वो तो दूसरा फॉर्म भरोगे? शायद बाद में करेक्ट। नहीं, आई थिंक बिट्स का भी शायद, हाँ बिट्स का मैं जब एग्जाम देने गया था ना, तो उसके एक दिन पहले मेरा आईआईटी का रिजल्ट आ गया था, तो मैं काफी रिलैक्स था बिट्स के एग्जाम में भी। तो नाइस, cool. I think before joining or preparation for college, we now have collected enough information जो हमारे स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा यहाँ पे. Now let's talk about counseling, है ना? The moment now मैं एक दो चीजें बस सेलिएंट पॉइंट्स यहाँ डालना चाहता हूँ कि मेरे को 11th 12th में मैंने जो देखा और रिपीटेड ईयर्स में मैंने क्या डिफरेंट किया, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाते विशाखापट्टनम या वाइजैक में भी बहुत अच्छा है, कोटा में भी अच्छा पढ़ाते हैं, बट जो डिफरेंस मतलब जो मेरे को एक्सपीरियंस आया वो ये था कि एक तो आपको डेली पढ़ना है। मेरे मतलब कई लोगों की हैबिट क्या होती है, एग्जाम के पहले 20 घंटा पढ़ लिया, बट एग्जाम जब नहीं आ रहा है तो 1 घंटा भी नहीं पढ़ा, ठीक है। बट आईआईटी या कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब आप भले थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ें। रोज 3-4 घंटा पढ़ें इज वेरी वेरी मच बेटर देन आप एग्जाम के 4 दिन पहले 20-20 घंटा पढ़ रहे हैं, उससे हेल्प नहीं होती है। अच्छा पलाश, यहाँ पे एक मिथ भी है इस टीचिंग के अराउंड, या फिर हम बहुत लोगों से सुनते हैं जब उनका सिलेक्शन हो जाता है एंड देन टीवी मीडिया उनके पास जाती है एंड दे से यार हम तो 16 घंटे पढ़ते थे, 18 घंटे पढ़ते थे। आई मीन प्रैक्टिकली ये तो 18 आवर्स 16 आवर्स ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप इतना कैसे पढ़ सकते हो? एंड आपको स्लीप उतना देर में सोना भी है, खाना भी है, सब कुछ करना है, राइट? बिल्कुल। देखो मैं मानता हूँ कि 1-2% बच्चे ऐसे होंगे जो 10-12 या 16-16 घंटे पढ़ते होंगे, बट जितने लोग आईआईटी में जाते हैं 5,000 6,000 8,000, ऑन एन एवरेज सारे बच्चे ऐसे नहीं होते हैं। मेरे ख्याल से जितने लोगों को मैंने देखा है, ऑन एन एवरेज लोग ऐसा होते हैं कि 5-6 घंटा रोज पढ़ते हैं, बट डेली पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जो 15-20 घंटे पढ़ते होंगे, बट वो एक्सेप्शन है। आपको वैसा जरूरी नहीं है कि आपके लिए वैसा वर्कआउट करें, क्योंकि आपको फिर स्लीप कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी, आपका खेल कूद कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपका कहीं ना कहीं आपका न्यूट्रिशन खाना भी कॉम्प्रोमाइज होगा। तो ये 5-6 घंटे आप बोल रहे हो, दिस इज प्योरली सेल्फ स्टडी, राइट? ये अदर देन है जो आप कोचिंग में कहीं भी आप पढ़ रहे हो, राइट? बिल्कुल। आप कोचिंग से आइए, 3-4 घंटे की कोचिंग होती है रोज। उसके बाद आके आपको 2-3 घंटा जो कोचिंग में पढ़ाया गया है सिर्फ वो रिवाइज करना है और होमवर्क करना है, ठीक है। आपको एक्सेप्शनल कुछ नहीं करना है मेरे हिसाब से। रोज जो कोचिंग में पढ़ाया गया उसको रिवाइज करो, और 2 टाइप के रिवीजन आपको रोज करने हैं मेरे हिसाब से। आज जो पढ़ाया वो, और अब तक जो पढ़ाया वो, ये आप रिवीजन अगर रेगुलर करते रहोगे और होमवर्क डेली का डेली करते रहोगे, तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने से कोई भी रोक सकता है। गॉट इट। ये सिंपल है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये बहुत लंबा समय हो जाता है ना। आप अगर देखोगे तो 11th एंड 12th वो 2 साल है, अगर लेट से आपने 1 साल और किया वो 3 साल, और उस मैच्योरिटी के साथ, क्योंकि वो एक ऐसा एज होता है जहाँ पे कुछ भी अगर डिस्ट्रैक्शन है तो यू टेंड टू गो फॉर इट, है ना? फॉर श्योर डेफिनेटली। नो डेफिनेटली ये हमारे स्टूडेंट्स को डेफिनेटली हेल्प करेगा, क्योंकि वो हमेशा ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर कितना देर पढ़ना चाहिए, एंड सर आज नहीं पढ़ा तो क्या ये इफेक्ट करेगा लॉन्ग रन में, कि सर घर पे रह के पढ़ ले। और एक हमने ये ऐसा भी देखा है पलाश, आपका भी ओपिनियन हम यहाँ पे चाहेंगे, कि बहुत लोग क्या करते हैं कि दे टेंड टू हैव मतलब खाना भी खुद बना रहे, है ना? मतलब कोई ऐसी जगह, क्योंकि सबको फैसिलिटी नहीं होता है मे बी मेस ज्वाइन करना, एंड या फिर हो सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो वो क्या करते हैं एक रूम ले लेते हैं और वहां पे खाना भी खुद बनाते हैं, एंड कपड़े भी खुद धो रहे हैं, एंड सब कुछ खुद कर रहे हैं, और फिर टाइम निकाल के पढ़ भी रहे। तो क्या आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे यहाँ पे कि मे बी वो सही तरीका है, या फिर यू थिंक कि नहीं यार खाना कहीं और से इंतजाम करो? क्योंकि खाना बनाना, बर्तन धोना, ये अपने आप में ही काफी देर टाइम ले लेता है, राइट? तो यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है? सो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आई थिंक थोड़ा सा फाइनेंशियली अगर नहीं भी पॉसिबल हो रहा, तो थोड़ा स्ट्रेच करके आप एटलीस्ट खाने और कपड़े वाली चीजों को 1-2 साल के लिए आप डेलीगेट कर दें मेस में और धोबी, क्योंकि वो 2-3 घंटे रोज क्रूशियल हैं आपके लिए। नॉट ओनली 2-3 घंटे, आप मेंटली भी थक जाएंगे, फिजिकली मेंटली थक जाएंगे,
और जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी अल्टीमेटली डाउन होएगी। तो उससे क्या होगा, फिर अल्टीमेटली आप शॉर्टकट ढूंढेंगे, खाने में शॉर्टकट, करेक्ट मैगी खा लिया, करेक्ट अनहेल्दी खा लिया, ठीक है। गॉट इट तो वो गॉट इट अल्टीमेटली लॉन्ग रन में इट विल नॉट हेल्प, क्योंकि रोज आप फुल मील नहीं बना पाएंगे। आपको लगेगा कि मैं करेक्ट वो टाइम डीपीबी सॉल्व करने में दे देता हूँ, या कुछ और सेल्फ स्टडी करने में दे देता हूँ, तो आप शॉर्टकट मैगी बना लेंगे, पैक्ड फूड खाने लगेंगे। तो आई डोंट थिंक करेक्ट वो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल है। आप थोड़े बहुत पैसे जरूर बचा लेंगे शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में वो आपका कहीं ना कहीं इट विल रियली नॉट हेल्प। गॉट तो इट मेरा सजेशन ये रहेगा कि मत करिए अनटिल एंड अनलेस आप मैनेज टाइम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। वो एक्सेप्शनल 2-3% लोग होते हैं जो, एक मेरा फ्रेंड था प्रशांत जैन, वो ओके स्कूल भी रोज जाता था कोटा में डेली, मतलब स्कूल भी जाता था, कोचिंग भी जाता था, उसके बाद सेल्फ स्टडी करके भी उसने आईआईटी में 25 रैंक निकाली, तो वाह 25 या 45 ऐसा कुछ। हाँ तो वैसे भी लोग हैं, लेकिन वो एक्सेप्शनल लोग होते हैं फिर, जो गॉट आप फुल इट टाइम स्कूल भी चले जाते हैं और फुल टाइम कोचिंग भी कर लेते हैं और कुछ। करेक्ट तो बट आई डोंट थिंक हर कोई वैसा कर पाएगा। करेक्ट 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 मेक तो सेंस वैसा कूल या ऑसम तो फिर पलाश यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं नाउ बिल्कुल। आपका रैंक आ चुका था है ना AI हम्म, 222 और अब आप डिसाइड कर रहे थे कि विच कॉलेज है ना कि अब बिल्कुल। और आपने कोटा से तैयारी किया था तो बॉम्बे जोन के कारण आपका काउंसलिंग आई बिलीव IIT बॉम्बे में ही हुआ होगा राइट नहीं, मेरा सेंटर एक्चुअल में रायपुर में था, तो ओके मेरा खड़गपुर में काउंसलिंग काउंसलिंग आपके कॉलेज खड़गपुर में काउंसलिंग ओके हुआ। ओके तो राइट बेसिकली राइट। आपने अपना एग्जाम दिया था रायपुर में राइट रायपुर से, ओके राइट। तो ये आ गया हमारा IIT खड़गपुर का जोन राइट आई थिंक बिल्कुल अब IIT में बिल्कुल। रायपुर में भी है आई थिंक सो आईआईटी, हाँ सर, भिलाई में है शायद आईआईटी। भिलाई में करेक्ट छत्तीसगढ़ में, हाँ छत्तीसगढ़ में है, एम्स में रायपुर में है, बट आईआईटी भिलाई में है। ओके बट गॉट रायपुर से भिलाई मतलब ऑलमोस्ट 30-25-30 किलोमीटर ही, तो कूल ऑलमोस्ट रायपुर में ही। कूल तो यस 2008 में बेसिकली रायपुर में अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप खड़गपुर जोन में आते हैं इसलिए आपका काउंसलिंग खड़गपुर में हुआ राइट सो यू बिल्कुल वेंट टू बिल्कुल। IIT खड़गपुर फॉर काउंसलिंग है ना राइट सो राइट। नाउ आपको डिसाइड करना था विच कॉलेज टू गो फॉर आपने कैसे ये डिसाइड किया था ये पहले ही सोच रखा था कि नहीं मुझे IIT बॉम्बे ही जाना है या फिर आप वहां पे हाँ, गए और डिस्कस किए हाउ वाज इट नहीं, वेरी फ्रैंकली उस टाइम मतलब जब सिलेक्शन हुआ था, तो मेरा बस यही था कि बॉम्बे जाना है, चाहे ओके कोई भी ब्रांच मिले। ओके मेरा पहले से बहुत प्री सिंप्लीफाइड, फाइनलाइज था ओके हाँ हाँ, सिंप्लीफाइड डिसीजन था। भले मेरे को सबसे लास्ट ब्रांच मिले ओके या कुछ भी मिले, मेरे को जाना बॉम्बे ही है। तो ओके ये, अब ये एग्जैक्टली कैसे आया ये मेरे को अभी याद नहीं है, ओके बट समहाउ, या तो शायद वो बॉम्बे का क्रेज रहता है, जब हम करेक्ट लोग बहुत सुनते हैं बॉम्बे के बारे में, या करेक्ट तो वो था या क्या था पता नहीं, बट शायद बॉम्बे सिटी के कारण नहीं, बट आईआईटी बॉम्बे मैंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी ब्रांच मिले, मेरे को आईआईटी बॉम्बे ही जाना है। ओके कूल तो तो मैंने आप फॉर्म जब भरा था काउंसलिंग का, हाँ, करेक्ट तो यहाँ पे भी एक फनी फनी स्टोरी है। तो ओके मैंने काउंसलिंग का फॉर्म भर दिया। पहले क्या होता था, मैनुअल होता था, बट मेरे करेक्ट शायद हम लोग के ईयर में वो ऑनलाइन, वहां जाके सेंटर में ऑनलाइन चूज करना पड़ा। ओके बट फिर भी हम लोग एक खुद से लिख के प्रिंट करके लेके गए थे, वहां पे दिखाया। वहां पे प्रोफेसर लोग रहते हैं हेल्प करने के लिए, आईआईटी के करेक्ट कुछ प्रोफेसर रहते हैं, कुछ स्टूडेंट वॉलंटियर्स रहते हैं, जिनसे आप किसी भी बात कर तरह का सकते डिस्कशन, किसी भी तरह का डाउट्स क्लियर कर सकते हो। गॉट इट तो मैंने अपना फॉर्म दिखाया उनको, मैंने ये भरा है। तो टॉप, मेरे ख्याल से मेरे टॉप 6 प्रेफरेंस आईआईटी बॉम्बे थे। आईआईटी किस बॉम्बे, ऑर्डर में आपने सीएससी, ब्रांच आईआईटी दे बॉम्बे। रखा था किस प्रेफरेंस में आप हाँ, तो पहले मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग भरा था, बट ओके वो मोस्ट लाइकली नहीं मिलने वाला था। करेक्ट सीएससी डुअल डिग्री मेरे ईयर से वहां से हट गया था, उन्होंने ओके सीट्स को बीटेक में मर्ज कर दी थी। ठीक करेक्ट है, तो उसके बाद मैंने भरा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर बीटेक ओके प्रोग्राम, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डुअल डिग्री माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर ओके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डुअल डिग्री कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग, फिर ओके मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके फिर मैकेनिकल डुअल, फिर ओके शायद केमिकल, सिविल एंड सो ऑन। ओके तो आई थिंक शुरू के मैंने मैकेनिकल तक आईआईटी बॉम्बे भरा था, ओके फिर सेम सीक्वेंस में आईआईटी दिल्ली भरा था, ओके फिर हाँ, तो ऐसा भरा था। तो फिर ओके वहां के जब प्रोफेसर से बात हुई, हाँ तो उन्होंने बोला कि आपने भरा है, अच्छी बात है, लेकिन आप कंप्यूटर साइंस को प्रेफरेंस क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको शायद खड़गपुर में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, करेक्ट या फिर वो है ना। तो दो प्रोफेसर बैठे थे, तो वो खड़गपुर के लिए थोड़ा सा वो कर रहे थे कि आप इंक्लाइन खड़गपुर थे में बिल्कुल करेक्ट आइए, अच्छा कॉलेज है, डेफिनेटली अच्छा कैंपस है, अच्छा कॉलेज है, आप करेक्ट कंप्यूटर साइंस यहाँ पे ले लीजिए। तो बट मेरा तो वहां तब तक ऐसा था कि बॉम्बे ही जाना है।
एकदम जुनून भरा हुआ था कि बॉम्बे जाना है, और कोई किसी किसी की कुछ सुनना ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि देखिए बॉम्बे ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी है, बॉम्बे सिटी एक्सपेंसिव है, फैमिली पे भी बर्डन आएगा, लेकिन फिर दूसरे एक प्रोफेसर बैठे थे, उन्होंने ऐसी मस्ती में बोला कि बच्चे को जाने दो, जिंदगी एंजॉय करने दो, ऐसा करके। तो फिर मैंने वो चॉइसेस वैसे ही रहने दी और बॉम्बे ही। हाँ ऑसम। नहीं, ऐसा बहुत होता है क्योंकि खड़गपुर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे मैंने देखा है पर्सनली वहाँ पढ़ के भी कि जो वहाँ के प्रोफेसर्स है वो प्रोफेसर्स 90% ऑफ द प्रोफेशन वहाँ पे ऐसे जो वहाँ पे ऑलरेडी स्टूडेंट्स थे, अपना बीटेक वहाँ से किया, एमटेक वहाँ से किया, फेलोशिप एंड रिसर्च स्कॉलर थे, एंड देन दे बिकेम प्रोफेसर। तो वहाँ के प्रोफेसर्स भी काफी जॉली मूड में रहते हैं, तो इट्स ऑलवेज फन टू इंटरेक्ट विद। नहीं, इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस था। कूल। Yes. और एक चीज ये था कि मेरी फैमिली बहुत 90s में खड़गपुर में रहती थी, मतलब 80s 90s के क्रॉस हम लोग खड़गपुर से ही थे। तो वो एक एडेड था कि मतलब पापा लोग का भी था कि खड़गपुर भी प्रेफरेंस में डाल दो ऊपर, तो बट मेरा somehow डिसाइड था कि बॉम्बे, तो फिर चेंज नहीं किया और बॉम्बे कर दिया। करेक्ट। वंस यू गेट इनटू आईआईटी, आप जो भी बोलोगे आपके गार्जियन भी बोलेंगे हाँ भाई ठीक है जो करना है करो। एग्जैक्टली, इट्स नाउ यस यस करेक्ट नाउ। यस, तो वो कुछ प्रेशर नहीं था, तो हाँ बिल्कुल। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि हाउ वाज योर कॉलेज लाइफ एंड एवरीथिंग। यहाँ पे हम लोग मुख्यतः इन सारे चीजों में बात करेंगे कि वहाँ पे मेस एंड हॉस्टल्स कैसे होते हैं, काइंड ऑफ वहाँ पे ऑक्यूपेंसी क्या होता है ना, मतलब सिंगल ऑक्यूपेंसी है, डबल ऑक्यूपेंसी है, या फिर किसी ईयर से सिंगल हो जाता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर में आप लोग क्या करते हो, है ना, एंड आपके स्टडीज यहाँ पे कैसे चलते हैं, एंड देन फॉलोड विद दिस विल बी इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट। बिल्कुल। सो कूल। बताइए। तो जब हम लोग जाते हैं कॉलेज, राइट, तो सबसे पहले तो कॉलेज की तरफ से और जो स्टूडेंट बॉडीज होती है उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा एफर्ट होता है सारे नए स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल फील कराना। करेक्ट। तो इस पे आई थिंक हर आईआईटीज में या हर कॉलेज में इनफैक्ट बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आप ही सोचो ना कि 17 18 19 साल के बच्चे आए हैं कॉलेज में, करेक्ट, एकदम से इतने सारे लोगों को देखते हैं, इंटिमिडेट हो सकते हैं, लेकिन उसको नॉर्मलाइज करने के लिए बहुत सारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखे जाते हैं। तो दो टाइप के ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं, एक होता है एकेडमिक ओरिएंटेशन प्रोग्राम, फिर दूसरा होता है कल्चरल या स्पोर्ट्स या बाकी चीजें, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आप ज्वाइन करने के बाद हफ्ते 10 दिन 15 दिन ये अलग अलग दिन अलग अलग ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलता है, जिससे क्या होता है कैंपस की या आईआईटी की सब चीजें आपको मालूम चल जाती है मोरलेस। कुछ लोगों से इंट्रोडक्शन हो जाता है, आप लोगों को जानने लगते हो, तो एक होमली एनवायरनमेंट आप फील करने लगते हो, होम सिकनेस वगैरह नहीं होती है, ठीक है। तो ये हुआ, और फिर आप धीरे धीरे आपको डिपार्टमेंट में भी ओरिएंटेशन होता है। मेरे को एक बहुत अच्छा चीज याद है, हम लोग का इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का फ्रेशर ओरिएंटेशन हुआ था, जिसमें एक प्रोफेसर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि देखो आप लोग हर कोई अपने अपने स्कूल के टॉपर रहे होंगे, डेफिनेटली आप आईआईटी में आए हो तो अपने स्कूल के, अपने कोचिंग के, अपने मोहल्ले के, जहाँ के भी आप टॉपर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हर कोई टॉपर नहीं रह पाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि अगर यहाँ पे 600-700 टॉप बच्चे आए हैं तो कोई फर्स्ट रहेगा, कोई मिडिल रहेगा, कोई लास्ट रहेगा। इससे आपको डिसहार्टन नहीं होना है, आपको इसको लाइफ मान के चलना है, और अपने एरिया में जिस चीज में आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसमें आपको आगे बढ़ना है। अब वो इंटरेस्ट आपका डिपार्टमेंट में किसी पर्टिकुलर चीज में हो सकता है, या फिर आपको पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर में हो सकता है, या स्पोर्ट्स में हो सकता है, कुछ भी चीज हो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना है, एकेडमिक्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो, करना है, या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पोर्ट, म्यूजिक, कुछ भी चीज, यहाँ आपके लिए सब चीजें ओपन है। तो वो एक बहुत अच्छी बात थी जो मेरे को आज तक मेरे दिमाग में है कि लाइफ में हर जगह ऐसे आएगा कि आप कितना भी compete कर लो, देयर विल बी समवन जो आपसे बेटर होगा। करेक्ट, ठीक है। व्हाइल कंपटीशन इज गुड, बट देन इट शुड नॉट प्ले नेगेटिव ऑन योर माइंड या इन योर लाइफ इन जनरल। तो वो एक बहुत पॉजिटिव चीज मेरे को डे 1 में लगी थी वहां पे, और वो अभी तक मेरे साथ है हमेशा लाइफ। इनफैक्ट हमने ये भी देखा है पलाश की जनरली जब कोई भी आईआईटी या फिर टॉप कॉलेज से, है ना, जब वो वापस घर आता है तो गली मोहल्ले या फिर सोसाइटी में, यार वो आया है ना, यार शर्मा जी का लड़का आया है, यार आप भी जाते होगे अपने घर तो होगा पलाश आया है यार, है ना। बट जब आप आईआईटी में हो तो यार
आपके बगल वाला भी IITian है ना, इट्स बिल्कुल लाइक बिल्कुल कि यार वहां पे कोई वैल्यू ही नहीं, मतलब वैल्यू इन द सेंस कि यू आल्सो नो कि यार अगर इफ आई एम IITian तो बगल वाला भी IITian है, उस रूम वाला भी IITian है, सारे IITians है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां वहां पे ना आप एडमायर भी करते हो लोगों को। सो करेक्ट यू आर गुड इन सर्टेन थिंग्स, बट बाकी जो लोग हैं वो भी किसी ना किसी चीज में बहुत अच्छे हैं। तो करेक्ट वो माहौल एक बहुत अच्छा क्या हो जाता है, पॉजिटिव माहौल, आप उनसे सीखते हो, कोई आपसे सीखता है, दोनों मिलके हेल्दी एनवायरनमेंट सब मिलके करेक्ट सीखते हैं, तो एक वो बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट लगता है मेरे को। करेक्ट तो अननेसेसरी का वैसा कंपटीशन नहीं होता है कि जैसे स्कूल में कई बार हो जाता है कि आप फर्स्ट है सेकंड है तो आपको बहुत ज्यादा अटेंशन मिलता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। अगर कोई टॉप भी कर रहा है, हाँ अपने क्लास में टॉप भी कर रहा है आईआईटी में, तो वो भी उतना एक्सेसिबल है सबके लिए। या कोई अगर अच्छा नहीं भी कर रहा है तो उसके लिए भी उतनी अपॉर्चुनिटीज फॉर श्योर डेफिनेटली है आगे बढ़ने के लिए। तो वो मेरे को बहुत अच्छी चीज लगती है, हाँ, किसी भी अच्छे कॉलेज में। नाइस नाइस, टू गुड। यस। तो पलाश, सो आपका डिपार्टमेंट ओरिएंटेशन हो गया, एंड व्हिच हॉस्टल यू गॉट इनटू? क्योंकि इनफैक्ट अभी हाँ हाल फिलहाल में एक मूवी भी आई थी छिछोरे, आई थिंक उसकी भी शूटिंग आई थिंक बिल्कुल बॉम्बे की ही हुई है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो फन फैक्ट, सो जो छिछोरे का हॉस्टल था, हॉस्टल 4, ओह, मैं फर्स्ट ईयर में उसी उसमें ही था। तो ओके, आईआईटी में हॉस्टल 1 2 3 के साथ, तो हॉस्टल का नाम भी है और नंबर भी है। तो करेक्ट, जैसे हॉस्टल 1 2 3 4 ऐसे हॉस्टल थे, और मैं हॉस्टल नंबर 4 में था ओके, फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में वो क्या करते हैं आईआईटी वाले, फर्स्ट ईयर के बच्चों को सारे हॉस्टल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, गॉट इट, ताकि क्योंकि 3 हॉस्टल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे हॉस्टल 3, हॉस्टल 4, ओके, आई थिंक हॉस्टल 3 था, हॉस्टल 2 3 4, और ओके, गर्ल्स के लिए हॉस्टल 10। ये ओके, 4 हॉस्टल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि क्या ओके, होता है, बच्चे एकदम से लॉस्ट ना हो जाए। गॉट इट, ठीक है, आपस में एटलीस्ट फर्स्ट ईयर वाले बहुत सारे बच्चे रहेंगे तो एकेडमिक्स में भी हेल्प होगी और सब करेक्ट, चीजें। तो वो उस तरीके से प्लान करके वैसा हॉस्टल हॉस्टल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो। ओके, और रूममेट्स वो ट्राई करते हैं कि सेम डिपार्टमेंट का रूममेट हो आपका। गॉट इट, ठीक है, फर्स्ट ईयर में वो सिंगल रूम नहीं देते हैं, डुअल दो ओके, लोग का रूम देते हैं। ओके, और दे ट्राई कि आपका रूममेट सेम डिपार्टमेंट से हो, ताकि आपको ओके, एकेडमिक्स और सब चीजों में ओके, सेम एटलीस्ट शुरू में हेल्प मिलता रहे एक दूसरे से। बट जब सेकेंड ईयर होता है, दे डिस्ट्रीब्यूट वो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स टू ऑल द हॉस्टल्स। तो हमारे ओके, हमारे टाइम में 13 हॉस्टल्स है, तो ओके, आपके सारे 13 हॉस्टल्स में वो इक्वली डिवाइड कर देते हैं। ओके, ठीक है, तो सेकेंड ईयर में फिर मैं हॉस्टल 8 वुडलैंड्स ओके, में आ गया था। वुडलैंड्स, ओके, नाइस, या तो हॉस्टल 8 से भी कई नोटेड एलुमनाइज हैं। सो नंदन नीलेकानी जो इंफोसिस के करेक्ट, को इन्फोसिस फाउंडर है, चेयरमैन है, हाँ, एग्जैक्ट। करेक्ट, करेक्ट, हाँ, अभी चेयरमैन या एक्स चेयरमैन है और फाउंडर है, तो वो हॉस्टल ओके, नंबर 8 से थे। और हॉस्टल वाओ, 4 से अपने मनोहर पारिकर, जिनकी अभी दो ओह, तीन साल पहले डेथ हुई सीएम है, ऑफ गोवा, राइट? गोवा गोवा करेक्ट, सीएम एंड एक्स डिफेंस मिनिस्टर, करेक्ट, वो हॉस्टल 4 से थे। करेक्ट, राइट, तो हॉस्टल 8 में था मैं सेकेंड ईयर पे, और वाओ, फर्स्ट ईयर हॉस्टल 4 में था। करेक्ट, नाइस, नाइस। तो सेकेंड ईयर से क्या आप लोग को सिंगल हॉस्टल ऑक्यूपेंसी मतलब एक में मिलने जाती है, या स्टिल डबल ही रहता है? नहीं, तो ऐसा था कि जब मैं ज्वाइन किया था उससे 1 2 साल पहले तक सीट्स कम हुआ करती थी। ओके, तो सबको सेकेंड ईयर में मोस्टली फर्स्ट सिंगल रूम्स मिल जाता था। बट जैसे आपको पता होगा 2007 8 के अराउंड सीट्स काफी बढ़ गई थी एकदम से। करेक्ट, करेक्ट, और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली बनने में टाइम लगता है, तो वो धीरे धीरे करेक्ट, हॉस्टल्स बन रहे थे। तो ओके, इसलिए हम लोग को सेकेंड ईयर में तो नहीं मिला, हम लोग को सिंगल रूम फोर्थ ईयर में मिला था। ओके, बट देन आई डोंट, मतलब कोई ऐसा कंप्लेंट नहीं है, इट वाज गुड, रूममेट इट वाज था गुड, मेरा। ओके, हाँ, मतलब फन था, इट वाज फन। ऐसा कोई सिंगल रूम की कोई जरूरत महसूस नहीं होती थी आईआईटी में, ओके, ऐसा कुछ नहीं। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो या तो आप बाहर हो, घूम, मतलब करेक्ट, करेक्ट, स्पोर्ट्स में हो या किसी चीज में हो या एकेडमिक्स में हो, डिपार्टमेंट करेक्ट, में हो, तो करेक्ट। ऐसा कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं महसूस होती सिंगल रूम की। एंड हाउ वाज मेस फैसिलिटी, है ना? हाँ, तो बहुत लोग बोलते हैं कि हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं होता है, कॉलेज का खाना अच्छा नहीं होता है। करेक्ट, मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, या मतलब करेक्ट, मेरे को पर्टिकुलरली ऐसा कुछ नहीं लगता था। सो आईआईटी में क्या होता है, हॉस्टल्स भी जो होते हैं, हॉस्टल्स या हॉस्टल का मेस भी होता है, वो एक स्टूडेंट की बॉडी होती है। करेक्ट, सो बहुत सारी चीजें स्टूडेंट मैनेज होती है, आईआईटी लेवल पे भी और आपके हॉस्टल लेवल पे भी। करेक्ट, तो प्रॉपरली इलेक्शंस होते हैं हर साल, और एक कमिटी बनाई जाती है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग इलेक्टेड मेंबर्स हैंडल करते हैं। तो ओके, जैसे मेस का एक सेक्रेटरी होता है, ठीक गॉट है, इट,
दो मेस के सेक्रेटरी होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेस की अच्छी फंक्शनिंग। तो मेस मेस में खाना सेक्रेटरी अच्छा भी बन रहा है। स्टूडेंट्स है, राइट? मेस सेक्रेटरी भी स्टूडेंट स्टूडेंट्स है? होता है, ओके। स्टूडेंट्स होता है। तो वो दे इंश्योर कि खाना अच्छा बन रहा है, टाइमली बन रहा है, ओके। हाइजीनिक हो रहा है, और टाइम टू टाइम जो बच्चे हैं उनका फीडबैक लेना, कोई चीजें इंट्रोड्यूस कराना, कोई चीजें हटाना, तो गॉट वो इट। काफी अच्छे से मैनेज करते हैं मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से खाना काफी अच्छा था। सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर काफी अच्छा ब्रेकफास्ट होता था, मतलब फ्रूट्स होता था, केला या फिर कोई दूसरा करेक्ट। फ्रूट, ब्रेड बटर जैम, एग वालों के लिए ऑमलेट्स या कुछ और एग रिलेटेड आइटम, फिर एक गरम नाश्ता, इधर पोहा या कुछ भी। तो ओके, तो प्रॉपर एक वेज एंड फुल नॉन वेज फुल। ब्रेकफास्ट। ओके, कूल कूल, सब कुछ। यस, आप दूध कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हो, मतलब सारी चीजें एक डिटेल जो अच्छे हेल्दी ब्रेकफास्ट में होनी चाहिए वो ओके। ब्रेकफास्ट होता था। ओके। फिर आपका लंच के टाइम लंच, और इवनिंग स्नैक्स, इवनिंग ओके। टी, फिर डिनर डिनर आपका। तो मेरे को कोई कंप्लेंट नहीं है ब्रेकफास्ट से, और आप पूरे पूरे मेस के खाने से काफी अच्छा मेस तो का उस खाना टाइम रहता पे व्हाट वाज द फी लाइक 2008 में, राइट, व्हेन यू वेंट इनटू आईआईटी? था। आई हाँ, थिंक नाउ इट हैज ड्रास्टिकली चेंज्ड एंड दे हैव हाइक्ड अप द यस फी, बट उस टाइम पे क्या यस। था फी स्ट्रक्चर वहां पे? यार, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली याद करूं तो दो फी के दो तीन कंपोनेंट्स होते थे। करेक्ट। पर सेमेस्टर एक होता था ट्यूशन फी का कंपोनेंट, जो करेक्ट। आपके एकेडमिक्स में एकेडमिक्स कंपोनेंट होता था। एक होता था करेक्ट। आपके हॉस्टल फी, और एक होती थी मेस फी। ठीक करेक्ट। है। तो जितना मेरे को याद आ रहा है, जो आपकी ये फी होती थी, ट्यूशन फी होती थी अराउंड 40,000 या 38 to 40,000 पर ओके। सेमेस्टर। ओके। ठीक है। और आपकी हॉस्टल की फी होती थी अराउंड 10 to 12,000 पर सेमेस्टर। ओके। और तो आई थिंक आपकी मेस की फी होती थी अराउंड 5 to 6,000 पर सेमेस्टर। ओके, गॉट इट। नहीं, या ज्यादा रही होगी, मेरे को अप्रोक्सीमेटली आप 10-20% ऊपर गॉट इट। नीचे पकड़ लीजिए, बट हाँ, तो 50 के अराउंड होती थी पर सेमेस्टर फी, सब मिला के 50 to 60। ओके। बट यहाँ पे मैं नोट करना चाहूंगा, काफी सारी स्कॉलरशिप है जो करेक्ट। आप अवेल कर सकते हैं। एक है मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप। तो वो एमसीए। आप एमसीएम स्कॉलरशिप, तो अगर करेक्ट। आप आपकी फैमिली एक पर्टिकुलर इनकम ब्रैकेट के अंदर आती है, तो वो करेक्ट। आई थिंक टॉप 20% स्टूडेंट्स को दे अवार्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एमसीएम ओके। स्कॉलरशिप। उसके ओके। अलावा भी कई डिपार्टमेंट लेवल स्कॉलरशिप होती है, कई करेक्ट। एलुमनाइज की तरफ से स्कॉलरशिप होती है। तो आप ओके। मेरे ख्याल से बहुत सारी स्कॉलरशिप्स अवेल कर सकते हैं, ओके। जिससे आपकी फीस थोड़ी और कम हो जाती है, ऐसा है। ओके, गॉट इट, गॉट इट। यस यस यस। तो फिर आई थिंक कि उस टाइम पे आपको सब कुछ लेके अराउंड ईयरली 1 लाख से लेके 1,20,000 के अराउंड आपका फी आता होगा। यस, बट इसमें एक चीज और है कि आपका हॉस्पिटल इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ कवर्ड सब होता कुछ है। कवर्ड होता है, करेक्ट। ये आईआईटी के अंदर एक डिसेंट सा, काफी अच्छा सा हॉस्पिटल है, ओके। और जो आपके लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये सारी चीजें इस प्राइस में ही इंक्लूडेड है। हमने ये देखा है कि ये हर एक आईआईटी में, खड़गपुर में भी था, आईआईटी बॉम्बे में भी हॉस्पिटल, क्या पुलिस स्टेशन भी होता है आईआईटी में? बिल्कुल, मतलब आईआईटी के अंदर आईआईटी का पुलिस स्टेशन भी है। वाह। नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं है, हम्म। सॉरी, पुलिस स्टेशन नहीं है, बट पूरी इंटरनल सिक्योरिटी की टीम है। ओके। पुलिस स्टेशन जस्ट पवई में, आईआईटी के जस्ट बाहर में ही है। ओके। बट हाँ, बट आई एम श्योर आईआईटी की जो सिक्योरिटी की टीम है वो पवई पुलिस स्टेशन से हमेशा कोऑर्डिनेशन में रहती है। तो कभी भी ऐसे अगर ओके। कुछ जरूरत पड़े तो आई थिंक इमीडिएट उनसे कोऑर्डिनेशन होकर हेल्प हो जाती है। बैंक्स भी होते हैं डेफिनेटली, स्कूल्स भी होते हैं हाँ, जो बैंक जिसमें। है, स्कूल्स है, दो स्कूल्स है, एक केंद्रीय विद्यालय है इनसाइड आईआईटी के ओके। अंदर, ओके। और एक कैंपस स्कूल करके है जहाँ पे ओके। आईआईटी के और बाहर के भी बच्चे भी पढ़ते हैं। केंद्रीय विद्यालय में भी आईआईटी के भी बच्चे हैं, बाहर के भी बच्चे हैं। तो ओके। एक सेल्फ सफिशिएंट आई थिंक टाउनशिप टाइप का एनवायरनमेंट टाउनशिप होता टाइप है। होता है। करेक्ट। हाँ हाँ, करेक्ट, गॉट जिसमें मतलब पूरा कॉलेज कैंपस है, मतलब एकेडमिक्स है, हॉस्टल्स है, प्रोफेसर क्वार्टर्स है, गॉट इट। मार्केट है, रेस्टोरेंट है, बैंक्स है, एटीएम्स है, रेस्टोरेंट्स भी अंदर में ही है? रेस्टोरेंट भी है। यस, हर हॉस्टल में कैंटीन होता है। करेक्ट। तो करेक्ट। यस, अंदर अंदर बस चलती है, अगर क्योंकि कैंपस बड़ा है, आपको करेक्ट। एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करना है तो इलेक्ट्रिक बसेस है। वाह, तो कितना बड़ा कैंपस है आईआईटी यस, बॉम्बे का? आई थिंक इट्स 550 एकड़ अराउंड, आई रिमेम्बर। हाँ, आई थिंक 550 to 600 एकर्स के हाँ, आसपास है। यस, करेक्ट हाँ, करेक्ट। 600 एकर्स, और हमने ये रफली भी सुना 10% है कि इंडिया। आईआईटी बॉम्बे के अराउंड में थोड़े जंगल्स भी, और कभी कभी लेपर्ड वगैरह भी आ जाते हैं कैंपस के अंदर। यस यस तो यस। तो ऐसा फनी कोई स्टोरी है, तो इंसिडेंट? हम लोग जब हाँ, मैं बताता हूँ। तो फनी स्टोरी है कि जब हम लोग पहले दिन गए थे, तो हम लोग को ओरिएंटेशन में एक पेपर मिला था। ओके। उसमें ये लिखा था कि दो चीजें आपके पास हमेशा रहना चाहिए, एक तो पैर में शूज,
और Okay. हाथ में छाता। Okay. बारिश कभी भी हो जाती है Okay. और कभी भी स्नेक्स वगैरह कभी भी दिख जाते हैं कैंपस में। Okay. तो काफी ऐसे लाइट टर्म्स में, बट हाँ स्नेक्स फिर भी आईआईटी एक तो ऑलरेडी अपने आप में काफी ग्रीन एनवायरनमेंट है, काफी सारे Correct. पेड़ पौधे हैं। और आईआईटी के जस्ट पीछे एक संजय गांधी नेशनल पार्क करके है बोरीवली में, उसका Okay. एरिया है। Okay. ठीक है, Got it. तो वहां से तो स्नेक्स वगैरह अंदर भी रहते हैं, ऐसे हॉस्टल में नहीं आते, बट बारिश वगैरह के टाइम में कभी कभी दिख जाते हैं हॉस्टल के Correct. बाहर या Correct. घर। Correct. और कई बार लेपर्ड आ जाते हैं और पीछे वाला जो नेशनल पार्क है वहां से। Okay. तो ऐसा कोई एक बार इंसिडेंट लाइक डेंजरस इंसिडेंट कभी हुआ हो? डेंजरस इंसिडेंट कभी नहीं हुआ है मेरी Okay. जानकारी में, किसी स्टूडेंट को कभी कुछ नहीं किया। बट एक बार मैंने एक बार दो लेपर्ड्स रात में आए थे, तो आईआईटी ने क्या कर रही है, रात भर एक तो पेट्रोलिंग होती है सिक्योरिटी Okay. की, तो वो इंश्योर करते हैं कि एवरीवन इज सेफ और रात को डेंजर एरिया में कोई बच्चे ना जाएं गलती से भी। Okay. बट एक बार दो लेपर्ड आए थे और अलग अलग जगह इन्होंने पिंजरे रख रखे हैं, ताकि टेम्पररली उन लेपर्ड्स को ताकि कोई डेंजर ना हो उस पिंजरे में, वो Okay. बंद हो जाए और फिर उनको वापस एज अ प्रोसीजर वो छोड़ देते थे फॉरेस्ट में। Okay. Got तो it. एक बार मैंने देखा था एक प्रोफेसर के शायद गैरेज में पिंजरे में एक दो लेपर्ड आ गए थे, वो हम लोगों ने फिर जाके देखा था। Wow. बट ऐसा Nice. कोई डेंजरस इंसिडेंट कभी नहीं हुआ है। हाँ, तो एक दो बार देखा है उस लेपर्ड। Awesome. Cool. Yeah. तो ये तो हो गई आपको आईआईटी के मेस हॉस्टल्स इन सब का बात। व्हाट अबाउट नाउ स्टडीज पे हम लोग बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर के बारे में बात कर लेते हैं पहले कि व्हाट आर द ऑप्शंस व्हिच हाँ, स्टूडेंट्स कैन गेट हियर। यस, तो ऑप्शंस आई थिंक जो ऑप्शंस हो सकते हैं मोर और लेस एक्स्ट्रा करिकुलर से रिलेटेड, वो सारे मोर और लेस होते हैं। अगर नहीं भी है तो आप उसको उनको परस्यू कर सकते हैं, उनके अराउंड आप एक क्लब बना सकते हैं, या जो Wow. भी लाइक माइंडेड लोग हैं उसको परस्यू कर सकते हैं, और आईआईटी की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है। ठीक Okay. है, तो Nice. जैसे आप आईआईटी में जाते हैं तो सबसे पहले जैसे मैंने ओरिएंटेशन बताया था, Correct. एकेडमिक ओरिएंटेशन एक अलग होता है, Correct. एक होता है एक्स्ट्रा करिकुलर रिलेटेड ओरिएंटेशन। तो उसमें Correct. जैसे आपका स्पोर्ट्स हो गया, फिर Correct. स्पोर्ट्स में आपके जो सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं उनका Correct. ओरिएंटेशन होता है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। ठीक है, Correct. तो उसके बाद आपका कल्चरल ओरिएंटेशन, आप अगर Correct. ड्रामेटिक्स में जाना चाहते हैं, डांस में जाना चाहते हैं, Correct. सिंगिंग में, म्यूजिक में, किसी भी चीज में, उसके लिए एक सोसाइटी या एक क्लब बना हुआ है जिसमें बच्चे मिलके वीकली या वीकली ट्वाइस मिलके उन चीजों को परस्यू करते हैं। Correct. और फिर आईआईटी में कुछ प्रोफेसर हैं या बाहर से टीचर्स आते हैं जो उन चीजों को सीखने में मदद करते हैं, और Got it. उन चीजों को और शोकेस करने के लिए बच्चे डिफरेंट कॉलेजेस के कल्चरल इवेंट या स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, या अगर स्पोर्ट्स में है तो इंटर आईआईटी स्पोर्ट्स मीट होती है, आजकल इंटर आईआईटी कल्चरल मीट भी होने लगी है शायद, या फिर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। वो सारी चीजें आई थिंक चलती रहती है। मतलब ऐसा कोई चीज नहीं है जो किसी को परस्यू करना है और उसका सपोर्ट ना मिले आईआईटी में। Okay. आप बिल्कुल, आपको कुछ चीज परस्यू करनी है, अगर वो चीज ऑलरेडी नहीं हो रही है तो आप जाइए, मैनेजमेंट को बोलिए, आपको तो किसी ना बेसिकली आप किसी, अपना खुद का भी सोसाइटी अगर लेट्स से आपको, बिल्कुल, ओके, एंड नो वन विल स्टॉप यू। नो वन विल स्टॉप। मैं बताता हूँ ना कि 2-3 सोसाइटी ऐसी थी जो मेरे देखते देखते में वहां पे बनी है। जैसे Okay. एक थी रूबिक क्यूब सोसाइटी। वाओ। Okay. तो हाँ, तो वो उसमें बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हुए थे, और हमने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, Wow. जिसमें एट द सेम टाइम मोस्ट नंबर ऑफ पीपल सॉल्व्ड रूबिक्स क्यूब एट अ टाइम। तो वो सोसाइटी फॉर्म हुई थी, और उसकी और एक दो सोसाइटी अब मेरे को याद नहीं आ रहा है जो पहले नहीं थी, बट मेरे रहते रहते में फॉर्म हुई थी। Okay. Got it. तो Got it. वैसे हाँ, एक फाइनेंस रिलेटेड फाइनेंस क्लब चालू हुआ था। तो मेरे क्योंकि रिसेंट टाइम्स में फाइनेंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है लोगों का, तो एक फाइनेंस क्लब चालू हुआ था, एक वेब एंड कोडिंग क्लब चालू हुआ था। जैसे Wow. जो बच्चे हैं जो मे बी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में नहीं है, बट उनको कंप्यूटर साइंस सीखने का मन है या कोडिंग सीखने का मन है स्पेसिफिकली, तो आप वेब एंड कोडिंग क्लब ज्वाइन करिए। उसमें आपके फिर इवेंट्स होते हैं और आप चीजों को अच्छे से सीख सकते हैं। तो आई थिंक मेरे ख्याल से कोई ऐसी कमी नहीं थी जिसके कारण आप कोई चीज नहीं सीख सकते हैं। Okay. Awesome. Cool. Yes. And what about now moving to the next part, that okay, what about studies? Now coming to studies, है ना? Yes. कैसा था आपका full 5 year का कोर्स वहाँ पे? आई थिंक काफी बैलेंस था। Okay. कभी भी बहुत एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं हुआ, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा लूज है या बहुत ज्यादा केयरलेस हो गए हैं। तो एक चीज मेरे को अच्छी लगती है आईआईटी के प्रोफेसर्स में और चीजों में, कि आपको हमेशा क्यूरियस रखते हैं। Okay.
तो जैसे एक फॉर्म ऑफ टीचिंग होता है जिसमें आपको सारी चीजें बता दी जाती है और आपको एक सॉर्ट ऑफ स्पून फीडिंग कर दिया जाता है। करेक्ट। बट वो उस टाइप का करिकुलम आई थिंक 11th 12th में कहीं ना कहीं आ जाता है, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है, आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करनी है, तो यू डोंट रियली हैव अ चॉइस टू गो इन अ वेरी डेप्थ इन डेप्थ रिलेटेड टू एनीथिंग। बट यहाँ पे क्योंकि आपके पास लंबा टाइम है, आप 4 साल एक डिपार्टमेंट को दे रहे हो, आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और प्रोफेसर भी उस तरीके से पढ़ाते हैं कि जैसे एक टॉपिक पढ़ा दिया, अब उसको आपको उसके रिलेटेड रेफरेंस मटेरियल दे देंगे जो आपको खुद को पढ़ना है। ओके। या आपको कुछ सेट ऑफ वीडियोस होगा या कुछ सेट ऑफ आपको प्रैक्टिकल एक्सरसाइज होगी जो आपको खुद को। हेलो, ओके, या सॉरी, Kadish, are we connected? या वी आर हाँ, यस। तो इसमें एक पॉइंट जरूर है कि शुरू में ये शायद काफी अटपटा भी लग सकता है, क्योंकि हम यूज टू नहीं होते हैं दिस फॉर्म ऑफ टीचिंग के, तो हमको शुरू में लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब ये अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं शायद। बट अगर आप लॉन्ग टर्म उसको थोड़ा सा, आपको लॉन्ग टर्म में रियलाइज होगा कि नहीं, इससे आपकी एक हैबिट बन रही है क्यूरियस होने की, क्वेश्चंस पूछने की, जाके खुद रेफरेंस मटेरियल पढ़ने की, क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा चीज है जो बहुत ही वास्ट है। करेक्ट। एक 6 महीने के सेमेस्टर में किसी एक कोर्स में सब कुछ पढ़ाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको जस्ट एक बेसिक स्टार्ट मिल सकती है, एंड देन यू विल हैव टू बिल्ड अपॉन दैट स्टार्ट। गॉट इट। तो आई थिंक हर कोर्स का एम वही होता था कि आपको एक उस टॉपिक के बारे में, अगर बेसिक कोर्स है तो एक बेसिक फाउंडेशन मिल जाए, अगर एडवांस कोर्स है तो एक एडवांस फाउंडेशन मिल जाए। बट देन यू विल हैव टू, एक सेकेंड, अपना फोन जस्ट, रियली सॉरी, फोन बंद करिए। हाँ, तो आपको एक बेसिक फाउंडेशन मिल जाए, एंड देन यू कैन रियली एक्सप्लोर अराउंड अबाउट दैट, कि आपको अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो आप रियली डीप में जाइए, आप प्रोफेसर से इंटरेक्ट करिए, आप फिर फर्दर उस टॉपिक्स में कोर्स ले सकते हैं। तो आईआईटी का करिकुलम पे मैं बात करता हूँ। करिकुलम भी ऐसा डिजाइन किया हुआ है, एक सेट ऑफ कोर्सेज तो फिक्स होते हैं, 50 या 60% कोर्सेज फिक्स होते हैं, बट जो रिमेनिंग 50% कोर्सेज हैं वो आप एज अ इलेक्टिव अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बेसिक कोर्स होगा या 2 बेसिक कोर्स होगा। बट अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, तो आप उसके फिर एडवांस कोर्सेज आप खुद ऑप्ट करके उसके लिए साइन अप कर सकते हैं। फिर आपके उसमें 1 2 3 4 5 5 6 6 10 10 एडवांस कोर्सेज भी हैं। इट डिपेंड्स ऑन आप कितना क्यूरियस हैं, आप कितना सीखना चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में। हम लोग का भी ऐसा था, आई बिलीव आईआईटी बॉम्बे में भी ऐसे इलेक्टिव्स आते होंगे जिसमें बहुत लोगों को मन होता है यार हमें स्पेनिश सीखना है या फ्रेंच सीखना है, एंड यू हैव चांस टू एक्चुअली एक्सप्लोर इन ह्यूमैनिटेरियन इन ब्रांच। बिल्कुल। तो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो होता है जैसे आपको एक इलेक्टिव लेना है कंपलसरी बिटवीन आइदर साइकोलॉजी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स या लिटरेचर। ठीक है, इसमें से एक लेना है आपका। एक लिटरेचर का सब्जेक्ट आई थिंक कंपलसरी भी होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपको इसमें से एक कंपलसरी होता है। एक चीज आईआईटी बॉम्बे में मेरे टाइम में इंट्रोड्यूस हुई थी, समथिंग कॉल्ड माइनर डिग्री। तो एक आपकी मेजर डिग्री है जो आप पढ़ रहे हो, एंड देन यू कैन ऑप्ट फॉर अ माइनर डिग्री। अगर आपका जो नॉर्मल करिकुलम है वो अच्छे से चल रहा है, आपके बैकलॉग्स नहीं है, इफ यू आर एबल टू कोप अप, you can then opt for a minor degree. If you complete I think 7 or 8 courses and a project in a department, then you are awarded a minor degree in department. जैसे मेरे को अगर करना होता, हाँ मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर मान लो मेरा इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में था, तो मैं ऑप्ट कर सकता था कंप्यूटर साइंस के माइनर डिग्री प्रोग्राम के लिए, और मैं अगर वहाँ के 6 या 7 कोर्सेज कंप्लीट कर लेता तो मेरे को एक कंप्यूटर साइंस में माइनर डिग्री मिल जाती। तो ये एक बहुत अच्छा उन्होंने फैसिलिटी इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार आप काउंसलिंग में ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको इंटरेस्ट पता नहीं होता, आप कॉलेज लेवल पे कर लेते हैं, किसी गाइडेंस पे कर लेते हैं, लेकिन 2 years डाउन द लाइन आपको रियलाइज होता है कि दिस इज नॉट वेयर माय इंटरेस्ट लाइज इन। आपका इंटरेस्ट हो सकता है इकोनॉमिक्स में, हो सकता है केमिकल में, हो सकता है कंप्यूटर साइंस में हो, ठीक है, या मैनेजमेंट स्टडीज में हो फॉर दैट मैटर।
तो आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया गया है, आपको ब्रांच चेंज नहीं भी करना पड़ेगा, बट आप माइनर डिग्री ऑप्ट करके उस डिपार्टमेंट के बारे में एक इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा चीज है मेरे हिसाब से। तो मेजर एंड माइनर डिग्री के अलावा राइट, एक मेजर डिग्री हो गई जिसमें आई एम डूइंग माय स्पेशलाइजेशन एंड ऑल, और एक मेरी माइनर डिग्री। राइट, तो आपने यहाँ पे ये भी राइट, बोला कि ब्रांच चेंज का भी एक ऑप्शन आता है, राइट? तो आईटी बॉम्बे बिल्कुल में टिल बिल्कुल। विच ईयर आई कैन चेंज माय ब्रांच? सिर्फ फर्स्ट ईयर में होता है या फिर इवन फर्दर? आई थिंक फर्स्ट ईयर के बाद होता है। ओके, फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट में ईयर ना? के बाद होता है। फर्स्ट ईयर के एंड में जो मेजर आपका जो मेजर ब्रांच है वो फर्स्ट ईयर के बाद चेंज होता है। ओके, बट जो स्पेशलाइजेशन है, जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स था। करेक्ट, अब 12th लेवल पे हमने खाली सेमीकंडक्टर पढ़ा होता है, माइक्रो करेक्ट, करेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ कोई नहीं पता जानकारी है। नहीं होती है। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, या फॉर दैट मैटर इंजीनियरिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। करेक्ट, बट जब मैंने 2-3 साल का कोर्स करा तो मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे को इंटरेस्ट ज्यादा दूसरे वाले स्पेशलाइजेशन में है। करेक्ट। तो ऐसा कोई डिजिटल सिग्नल फॉर्मल प्रोसेसिंग, करेक्ट, करेक्ट, हाँ, कम्युनिकेशन एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ऐसा कोई करेक्ट, फॉर्मल प्रोसेस नहीं था। बट मैं जाके अपने एचओडी से मिला, करेक्ट, उनको सिचुएशन बताई कि मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट इसमें आ रहा है, गॉट कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग में। एंड ही वाज वेरी वेरी हेल्पफुल, वेरी सपोर्टिव। तो इट। उनके रिकमेंड, फिर उन्होंने रिकमेंड किया और मैंने अपना वाओ, स्पेशलाइजेशन स्विच कर लिया। तो ओके, ये फ्लेक्सिबिलिटी भी मेरे को काफी अच्छी लगती है एक अच्छे कॉलेज में, कि क्योंकि 12th लेवल पे आपको कुछ भी मालूम नहीं चल सकता कि आपका इंटरेस्ट करेक्ट, क्या है। ट्रू, ठीक है, वेरी इस ट्रू। तो ये सब अगर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कॉलेज में, तो आप अपना इंटरेस्ट भी चेंज कर सकते हैं, मतलब अपना एकेडमिक्स चेंज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो गॉट आई थिंक मेरे लिए अच्छा रहा। मैंने प्रोजेक्ट भी फिर क्रिप्टोग्राफी में किया, जो सिग्नल प्रोसेसिंग और उसका कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो आई थिंक इट नाइस, वाज गुड फॉर मी। या ओके, कूल, तो ऑसम, ये 2-3 तरीके हैं जिसमें आप जिससे आप चेंज कर सकते हैं। एक और तरीका है, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑडिटिंग अ कोर्स। ओके, ठीक है, वो आपके डिग्री में नहीं आएगा कहीं भी, लेकिन अगर ओके, आपको इंटरेस्ट है किसी कोर्स में, तो आप आईआईटी के किसी भी कोर्स में जाके बैठ सकते हैं, उस कोर्स को ऑडिट कर सकते हैं। ओके, तो आप नॉर्मल करिकुलम फॉलो करेंगे। ओके, अगर आप उस कोर्स का प्री रिक्विजिट आप फुलफिल करते हैं, हर कोर्स का एक प्री रिक्विजिट होता है। जैसे करेक्ट, कोई एडवांस कोर्स है तो उसका बेसिक कोर्स प्री रिक्विजिट होगा, तभी ओके, आपको वो कोर्स अच्छे से समझ में आएगा, राइट? करेक्ट, तो करेक्ट, आप अगर आपके पास बैंडविड्थ नहीं है कोई कोर्स को क्रेडिट करने की, करेक्ट, बाई क्रेडिट आई मीन आपके डिग्री में लिख के आएगा। तो करेक्ट, अगर आपको जस्ट प्योरली बेस्ड आउट ऑफ इंटरेस्ट आपको करना है, तो आप कोर्स को जाके ऑडिट कर लीजिए। आप कोर्स में ओके। बैठिए, आप उसके प्रोजेक्ट्स करिए, आप उसके एग्जाम्स लिखिए, बिल्कुल लिखिए। आप वो भी कर सकते हैं अगर आपको तो इंटरेस्ट है तो। बेसिकली ये पलाश आप ये कहना चाह रहे हो कि जस्ट आपको मन होना चाहिए पढ़ने का, जिस बिल्कुल कोर्स में बिल्कुल जाना बिल्कुल, है बैठ जाओ, फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मैं हंड्रेड कंप्यूटर परसेंट साइंस का हूँ और मुझे सिविल का कुछ कोर्स पसंद है, मत लो 100%। इलेक्टिव, डायरेक्टली जाके बैठ जाओ और प्रोफेसर भी नहीं पूछेंगे क्यों आके बैठे हो, एंड यू कैन कंटिन्यू हाँ डूइंग हाँ हाँ, 100%। नहीं, एक फॉर्मल प्रोसेस है। आप इट। जब ओके, हर सेमेस्टर का फॉर्म भरते हो, तो ओके, वहां पे एक ऑप्शन होता है ऑडिटिंग अ कोर्स। तो कूल, आप प्रॉपरली वहां पे यू कैन अप्लाई टू ऑडिट अ कोर्स। तो ओके, ओके, बहुत अच्छी फैसिलिटीज दी हुई है। तो मेरे ख्याल से स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी सीख सकते हो, एनीथिंग ओके, एंड एवरीथिंग एंड नो वन विल सीख सकते हो, स्टॉप यू, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं। आपको लोग हेल्प ही नो वन विल करेंगे। स्टॉप, हाँ, करेक्ट, ऑसम, हेल्प करेंगे, 100% हेल्प करेंगे, बिल्कुल। मैंने एक इलेक्टिव कोर्स लिया था, इंट्रोडक्शन टू कॉग्निटिव लर्निंग ओके, एजुकेशन। ऐसा एक डिपार्टमेंट था एजुकेशनल टेक्नोलॉजी करके, ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट का एक सब सब डिपार्टमेंट था। बहुत ही आई ओपनर और बहुत ही अच्छा कोर्स था। बेसिकली उसमें ऐसा सिखाते थे कि हम बेसिकली ह्यूमन कैसे लर्न करता है चीजें, ओके, राइट फ्रॉम आवर बर्थ। और हम कोई भी चीज नहीं पढ़ते हैं, नहीं सीखते हैं, तो हाउ डू वी लर्न, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड दैट। बिहाइंड इट, ओके, नॉर्मली हम ये कोर्स जाके नहीं पढ़ेंगे, करेक्ट, बट लेकिन मैंने समाउ लिया, मैंने ये इलेक्टिव कोर्स, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। मतलब काफी कुछ सीखने मिला। तो ऐसे काफी कोर्सेज, एक मैंने कोर्स लिया था साउंड डिजाइन। जो मूवीज में साउंड डिजाइन होती है, ओके, उसमें करेक्ट, क्या टेक्नोलॉजी होती है, कैसे करते हैं। वो एक फिल्म एंड एनिमेशन ग्रुप है करेक्ट, डिजाइन डिजाइन सेंटर के अंदर, उसका एक कोर्स लिया था। काफी काफी ओके, अच्छा कोर्स था। तो आप कुछ भी कोर्स ले सकते हैं, बस आपको सीखने की वो होनी चाहिए, आई थिंक। करेक्ट, ऑसम, कूल। यस यस। तो पलाश, यहाँ पे इतने सारे पढ़ाइयाँ हो गई, राइट? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है आगे जाके इंटर्नशिप का, सो दैट बिफोर गोइंग इनटू जॉब एक काइंड ऑफ एक इंडस्ट्री एक्सपोजर, राइट? इंटर्नशिप का काइंड ऑफ वही एक मतलब है, राइट?
तो इन जनरल बिल्कुल। इन थर्ड ईयर इट काइंड ऑफ गेट्स कि यार आपको इंटर्नशिप करना है, तो इज इंटर्नशिप कंपलसरी इन आईआईटी बॉम्बे या फिर ये ऑप्शनल होता सो पहले कंपलसरी था, है? बट अब कंपलसरी नहीं है। ओके उसका मेरे ख्याल से जितना मेरे को समझ में आया, स्पेसिफिकली आईआईटी बॉम्बे के मैनेजमेंट की तरफ से, ओके उनका हमेशा से फोकस रहा है कि दे वांट टू गिव यू ऑल द फ्लेक्सिबिलिटी दैट यू कैन हैव ओके टू, क्योंकि उनका उनका मेरे ख्याल से ये मानना है कि आप 18 प्लस हो, आप 2 साल आईआईटी में बिता चुके हो, आपने काफी सारी चीज देख देख रखी है, तो इट डज नॉट मेक सेंस टू इम्पोज अ लॉट ऑफ थिंग्स। करेक्ट आप खुद डिसाइड करो आपको क्या आपके लिए अच्छा है। गॉट इट इंटर्नशिप अच्छा है तो इंटर्नशिप करो, आपको रिसर्च प्रोजेक्ट करना है तो आप किसी भी प्रोफेसर की लैब में आईआईटी में या बाहर या अब्रॉड अप्लाई करके, वो एक आपके लिए पाथ है। करेक्ट आपको कुछ नहीं करना है, रिलैक्स करना है, वो कर सकते हो। गॉट इट आपको स्टार्टअप करना है तो इंक्यूबेशन सेंटर है, आप स्टार्टअप के डायरेक्शन में जा सकते हो। वाओ मेरे ख्याल से वो फ्लेक्सिबिलिटी आईआईटी में दे रखी है, इसलिए कंपलसरी इंटर्नशिप उन्होंने हटा दिया है, ओके क्योंकि उससे अननेसेसरी प्रेशर भी आता था और कई लोग के लिए वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल भी नहीं होता था। ओके क्योंकि अगर आपको कंपलसरीली करनी है तो फिर आप कोई भी कंपनीज में जाके कर लोगे, करेक्ट ठीक है, आपकी इंटरेस्ट का भी काम नहीं है, जस्ट बिकॉज आपको करना है, एक टिक करेक्ट मार्क करना है, आप कर रहे हो, तो वो ओके 3 महीना 4 महीना समर वेस्ट होता था। गॉट बट इट एट द सेम टाइम दूसरा चीज जो मैंने देखा है कई कई बार, कि आजकल कई बच्चे रैट रेस में जाके फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप करना चालू कर देते हैं। हाँ करेक्ट करेक्ट मतलब अगर आपका एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बिल्कुल करो, लेकिन जस्ट बिकॉज कोई और कर रहा है, आपका फ्रेंड कर रहा है, प्लीज करेक्ट इसलिए मत करो, इसलिए मत करो। आप फर्स्ट ईयर से, कई लोग की रेज्यूमे बनाने के चक्कर में करना चालू कर देते हैं। कई लोगों को लगता है कि मैं अपने रेज्यूमे में 5 इंटर्नशिप दिखाऊंगा एट द एंड ऑफ 4th ईयर तो मेरा रेज्यूमे बहुत अच्छा बन जाएगा। मे भी बन जाएगा, मे भी नहीं बनेगा, बट आप जो आईआईटी या किसी भी कॉलेज की लाइफ है, जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, आपको चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए, फिर आप वहां पे बहुत कुछ लूज कर रहे हो। मैं आपकी फ्रेंडशिप वैसी नहीं बनेगी, आप एक्स्ट्रा करिकुलर वैसा एंजॉय नहीं कर पाओगे, आप एकेडमिक्स को उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका फोकस खाली इंटर्नशिप, अच्छी इंटर्नशिप उसमें है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 2 साल तक तो कुछ भी मत करो। हाँ, अपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट करते रहो, अपने हॉबी में कुछ सीखना है करते रहो, बट फर्स्ट ईयर से ये इंटर्नशिप में मत लग जाओ प्लीज। सेकेंड ईयर में करो अगर आपका मन है तो, या सेकेंड ईयर में आप एक डिपार्टमेंट में रिसर्च प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। जैसे मैंने सेकेंड ईयर में अपने डिपार्टमेंट में एक प्रोजेक्ट कर लिया था सेकेंड ईयर के समर्स में, तो इट वाज वेरी रिलैक्स्ड आल्सो, बट इट वाज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस आल्सो। फिर मैंने थर्ड ईयर में जाके कंपनी में जूनिपर नेटवर्क्स बैंगलोर में 2 महीने की इंटर्नशिप, फॉर्मल इंटर्नशिप करी थी। तो वो प्लेसमेंट सेल के थ्रू कंपनीज आती है, इंटरव्यूज लेती है और उसके थ्रू इंटर्नशिप का सिलेक्शन होता है। हाँ, तो वो भी कंपलसरी नहीं था, बट ठीक है, करना है, एक्सपोजर चाहिए, कैसा काम होता है, तो इसलिए फिर ऑब्वियसली अच्छा हुआ कर लिया। तो ये सीन है इंटर्नशिप और ट्रेनिंग का। बट मेरे को लगता है कि जो इंटरेस्ट आ रहा है वो करो, कोई रैट रेस में मत भागो। फर्स्ट ईयर से तो बिल्कुल रेज्यूमे बनाने के चक्कर में मत रहो, आप चीजों को एक्सप्लोर करो, अपने इंटरेस्ट को वो करो, बाउंड्रीज पुश करो, पहचानो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑसम, कूल। हाँ, इंटर्नशिप तक आने के बाद नाउ आप थर्ड ईयर कंप्लीट करके अपने इंटर्नशिप कंप्लीट कर चुके हो, लेट्स से, एंड नाउ यू हैव आइडेंटिफाइड कि यार अब कंपनीज आने वाली है, राइट? नाउ इज द टाइम, एक्चुअल टाइम कि अब आप हमको प्लेसमेंट्स के लिए जाना है। तो सबसे पहला एक डिफरेंस होता है नॉर्मल कॉलेजेस एंड आईआईटीज में। आई एम नॉट वेरी सर्टेन अबाउट एनआईटी, और एनआईटी के कुछ स्टूडेंट से भी हम बात करने वाले हैं, अलुमनाई से भी बात करने वाले हैं। बट जो नॉर्मल कॉलेजेस है उसमें ऐसा होता है कि अगस्त से ही कंपनीज स्टार्ट हो जाती हैं आना, राइट? आप जैसे ही 7th सेमेस्टर में गए हो, हालांकि आपका अगर डुअल डिग्री है तो आई बिलीव आपके लिए 9th सेमेस्टर होगा वो, राइट? राइट है ना? तो जनरली बाकी नॉर्मल कॉलेजेस में होता है कि अगस्त के टाइम फ्रेम से ही कंपनी आने लगती है एंड यू स्टार्ट सिटिंग इनटू द प्लेसमेंट, बट इन आईआईटीज इट्स कंप्लीटली डिफरेंट, है ना? राइट। तो तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कैसा होता है। तो yes. जो आपका सेकेंड लास्ट सेमेस्टर होता है, ठीक है, Correct. तो उसके स्टार्ट से ही कंपनीज के प्री प्लेसमेंट टॉक्स चालू हो जाते हैं। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड प्री प्लेसमेंट टॉक्स, जिसमें कंपनीज एक और मैं यहाँ पे मिथ या डर बोलोगे वो दूर करना चाहता हूँ, जो हमको कॉलेज में रियलाइज नहीं होता है। बहुत ही कैटेगोरिकली मैं मेंशन करना चाहता हूँ, जितनी जरूरत हमको जॉब की होती है ना, उतनी ही जरूरत कंपनीज को अच्छे बच्चों की होती है।
अच्छे लोगों की होती है। ये दिस इज अ टू वे स्ट्रीट, ठीक है। लेकिन कॉलेज में हम क्या रहता है, कई बार बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं कि कंपनी आएगी, जॉब चाहिए, हमको जॉब नहीं मिली तो क्या हुआ, इसकी जॉब लग गई, इसके, ये एक बहुत ही हम कैरिड अवे हो जाते हैं, जो कि ठीक है, मतलब ऑब्वियसली उस टाइम कोई बताने वाला नहीं होता है, या माहौल ऐसा बन गया होता है। बट इट इज अ टू वे थिंग। जितनी जरूरत आपको अच्छी कंपनी की है, उतनी ही जरूरत कंपनीज को अच्छे लोगों की है। तो इसीलिए कंपनी आती है अपने बारे में प्री प्लेसमेंट टॉक देने, या मैं सरल शब्दों में बोलूं तो अपने आप को एडवर्टाइज करने। करेक्ट, ओके। और यहाँ पे सिर्फ बातचीत होती है, नथिंग प्लेसमेंट ओरिएंटेड, कुछ भी नहीं हो रहा है। हाँ, बातचीत होती है, कंपनी अपने बारे में अच्छा बताती है, अपने पैकेजेस बताती है, अपने ऑफिस के बारे में बताती है, अपनी लीव पॉलिसी, अपनी जो भी अच्छी चीजें हैं वो बताती है कि कैसे प्लेसमेंट होगा, क्या क्या प्रोसेस होगा। अभी प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा है, बस आप उनके प्लेसमेंट टॉक्स में जाके वो किस बारे में, किस चीज में काम करते हैं, कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल लेके आएंगे, वो सारी चीजें बताते हैं। तो ये प्री प्लेसमेंट टॉक्स स्टार्ट हो जाता है समवेयर अराउंड अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से। तो ये चलता है ऑलमोस्ट नवंबर तक। फिर नवंबर में स्टार्ट होता है, कुछ कंपनीज एग्जाम्स लेती है, फर्स्ट राउंड ऑफ टेक्निकल एग्जाम्स, या कोई ट्रेडिंग या फाइनेंस की कंपनी आ रही है तो वो फाइनेंस रिलेटेड कुछ टेस्ट लेती है, कुछ, क्योंकि क्या होता है ना, 600 बच्चे हैं, 800, 1000 बच्चे हैं, कंपनी को कुछ क्राइटेरिया चाहिए फिल्टर करने का, ठीक है। सब्जेक्टिव तरीके से कंपनी फिल्टर करेगी तो बहुत ज्यादा उनको टाइम लगाना पड़ेगा हर एक के रेज्यूमे को गो थ्रू करने के लिए। तो कंपनी एक लेवल ऑफ एग्जामिनेशन मोस्टली ऑब्जेक्टिव लेती है, ताकि उनको ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव तरीके से दे कैन फिल्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये नवंबर में जनरली होता है, एंड इट गोज ऑल द वे टिल दिसंबर फर्स्ट वीक, एंड इट गोज ऑन जब तक प्लेसमेंट सीजन चलता है तब तक। बट एक्चुअल जब ये फिल्टर हो गया, इससे फिर शॉर्टलिस्ट आ जाती है। कई कंपनीज दो राउंड भी लेती है एग्जाम्स का, उससे शॉर्टलिस्ट करती है फर्दर। फिर 1 दिसंबर से मोस्टली कंपनीज आना चालू होती है कैंपस इंटरव्यूज के लिए। ओके, नाउ अब आपका फाइनली इंटरव्यूज चालू हो रहा है। फाइनली इंटरव्यू, इसमें मेरी एक बहुत अच्छा पर्सनल एक्सपीरियंस और स्टोरी है, जिससे आई थिंक कुछ लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिल सकता है। तो कई बार कंपनीज क्राइटेरिया रखती है CGPA या CPI का, अबाउ 7 वाले ही एलिजिबल हैं या अबाउ 8 वाले ही एलिजिबल हैं, ठीक है। तो जब हम लोग का ये क्राइटेरिया चल रहा था, तो माइक्रोसॉफ्ट आई थी और उनका क्राइटेरिया था एग्जाम में बैठने का 7, CGPA क्यूमुलेटिव CGPA 7। बट समहाउ मेरा क्योंकि मेरा एक सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी था, मेरा उस टाइम CGPA रह गया था 6.96। वाओ, ठीक है, जस्ट ऑन द एज। हाँ, तो आइडियली तो मैं एलिजिबल नहीं था उसके लिए, बट मैंने सोचा कि एग्जाम देते हैं, एंड देन विल सी कि क्या होता है। तो मैं बट एग्जाम भी में भी क्वालिफाइड आप नहीं होते हो अगर आपका वो नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैं एग्जाम हॉल में गया और जो लोग आए हुए थे एग्जाम लेने, उनको मैंने अपनी बात बताई, अपना सिचुएशन बताया कि मैं बॉर्डर में हूँ, 6.96 हूँ, बट आई एम रियली इंटरेस्टेड, एंड मेरे को लगता है कि मेरा नॉलेज इस फील्ड में है। मैंने 3-4 साल जो भी है इस फील्ड में खुद से मेहनत या कुछ कोर्सेज लेके मेहनत करी है, और मेरे को लगता है कि मैं एलिजिबल उस बेसिस में हो सकता हूँ। तो उन्होंने मेरी बात सुनी और मेरे को बोला कि आप टेस्ट तो दीजिए, विल सी। ओके, इट सीम्स लाइक जब भी आप बात बता रहे हो, इट्स लाइक IITian ना नहीं सुनते हैं, एवरीवेयर दे गो दे सीम टू गेट यस ओनली, कि भाई हाँ ठीक है, ना नहीं सुन, हाँ ना, वो भी है और ना नहीं सुनते नहीं। मेरे को लगा कि क्या उनको वो किया होगा, स्ट्राइक किया होगा कि एटलीस्ट मैं एफर्ट दे के आया हूँ। कई बच्चे, बहुत सारे बच्चे रहे होंगे जो उस चीज के कारण एलिजिबल नहीं रहे होंगे, और उनका नॉलेज और गिव अप कर दिया, ऑल्दो उनका नॉलेज अच्छा रहा होगा, उनका इंटरेस्ट रहा होगा, नॉलेज अच्छा रहा, लेकिन गिव अप कर दिया। बट उनको शायद अच्छी लगी होगी कि भाई एफर्ट डाल के कोई आया है, इतना इंटरेस्टेड है, तो लेट्स अलाउ हिम टू गिव द टेस्ट एटलीस्ट। तो मैंने टेस्ट दिया और टेस्ट अच्छा हुआ, मेरा शॉर्टलिस्ट आ गया इंटरव्यू के लिए। तो आई थिंक बहुत, मतलब मेरा जो एफर्ट था और वो काम आया, और इंटरव्यू का डेट आ गया 1 दिसंबर। अब यहाँ पे भी एक स्टोरी है मेरी, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से नहीं, राइट, मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हूँ, तो मेरी कोडिंग की प्रैक्टिस
उतनी ज्यादा नहीं रही है। करेक्ट, नॉलेज था, कंसेप्ट था और कोडिंग कर रखी थी, करेक्ट, बट क्योंकि आपके एक्सपीरियंस और आपका प्रैक्टिस उतना नहीं है, तो नेचुरली आप एज कम्पेयर टू अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आप स्लो रहेंगे थोड़ा, चलो करेक्ट, अग्री, तो स्लो रहेंगे। तो वहां पे मेरा कंपटीशन था, आप इमेजिन करिए 4 ईयर सीएस के बच्चे, करेक्ट, जो ऑब्वियसली मतलब सीएस के बीटेक, सीएस के एमटेक, जिन्होंने 6 साल और मोरलेस सीएस की पढ़ाई पढ़ी है, उनकी स्पीड तो काफी अच्छी रही होगी। करेक्ट, तो मेरा जब फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू चल रहा था, ठीक है, तो उसमें एक राउंड था एंड जिसमें एक दैट इज इन क्वेश्चन था माइक्रोसॉफ्ट ओनली, दैट इज फॉर माइक्रोसॉफ्ट, ओके, जिसमें पेपर में आपको लिखना था कोड एक प्रोग्राम का। ओके, सूडो कोड तो काइंड ऑफ, सूडो कोड नहीं, उसको उन्होंने बोला था एक आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, ओके, उसको आप सिंटैक्स के बारे में उतना वो मत करो, बट आपको हाँ, जितना सिंटैक्स याद है आप अज्यूम उससे, करके वो लिखते चलो। ओके, तो उससे उनको 2-3 चीजें जो उनको टेस्ट करनी रही होगी वो टेस्ट करनी रही होगी। तो मेरे को हाफ वे इनटू इट मेरे को रियलाइज हुआ कि उनको शायद ऐसा लग रहा है कि मैं स्लो लिख रहा हूँ बहुत, ऑल्दो मेरा कंसेप्ट सही है, मैंने डिस्कस कर लिया उनसे कंसेप्ट, लेकिन मैं लिखने में स्लो हो रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपॉर्चुनिटी लेके मैंने खुद से हाईलाइट कर दिया कि आपको शायद लग रहा होगा मैं स्लो लिख रहा हूँ, बट क्यों, ये इसलिए है क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से हूँ और मेरी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है। तो ये मेरे बोलने का कारण ये था कि अगर ये स्पीड के कारण वो रिजेक्ट करते हैं, तो लेट मी क्लैरिफाई एंड पुट फॉरवर्ड की स्पीड क्यों कम है। ओके, तो आई थिंक उसको उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और उस चीज को क्राइटेरिया नहीं बनाया मेरे को रिजेक्ट या सेलेक्ट करने के लिए, मेरे कंसेप्ट को और मेरे करेक्टनेस ऑफ द आंसर को बनाया और स्पीड को नहीं बनाया। तो यहाँ से मैं ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि वहां पे आप कंफर्टेबल होके जो भी चीजें हैं आपको आई थिंक वहां रखनी चाहिए, और एज अ कॉन्वर्जेशन वो इंटरव्यू प्रोसेस रखना चाहिए, ना कि डर के या इंटिमिडेट होके। कंफर्टेबल हो जाओ, और जो भी चीजें हैं, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ हुआ जिसके कारण आपका रेज्यूमे में कुछ पर्टिकुलर चीज वैसा है, या फिर आपके नॉलेज में कोई चीज वैसी है, आई थिंक यू शुड पुट फॉरवर्ड दोज थिंग्स सो दैट इंटरव्यूअर को आपका बैकग्राउंड समझ में आए। तो हाँ, 3 राउंड ऑफ इंटरव्यूज हुए, फिर मेरा फाइनली माइक्रोसॉफ्ट में हो गया। और मेरे को लगता है कि वो जो 2 क्रूशियल पॉइंट थे, एक सीपीआई वाला जो मैंने अपफ्रंट बता दिया, और ये अपफ्रंट बता दिया कि मेरी स्पीड नेचुरली कम रहेगी एज कम्पेयर टू अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, वो मेरे लिए बेनिफिशियल रहा आई थिंक। सो माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट डे आई एंड फर्स्ट डे यू गॉट प्लेस्ड, इज इट? फर्स्ट डे प्लेसमेंट हो गया, राइट। वाओ, एंड हाउ मच दे वर ऑफरिंग एट दैट टाइम इन 2013? उस टाइम वो ऑफर कर रहे थे 2013 में, सीटीसी उनका था 18 लाख प्लस ज्वाइनिंग और रिलोकेशन बोनस वगैरह होता है उनका फर्स्ट ईयर में, प्लस उसके अलावा कुछ स्टॉक्स वगैरह कुछ थे, आई थिंक 1.5-2 लाख के स्टॉक। वैसे 18-19 वो इंक्लूडेड था या नहीं इंक्लूडेड था स्टॉक्स में कोई याद नहीं आ रहा, बट हाँ अराउंड दैट 18-19 के आसपास था। बट मैं यहाँ फ्रेशर्स को बोलना चाहूंगा कि सैलरीज वगैरह आई डोंट थिंक उतना मैटर करेगा 3-4 साल बाद। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, यू विल एंड अप समवेयर जहां आपको सैलरी अच्छी मिलेगी ही मिलेगी। तो डोंट वरी टू मच अबाउट योर फर्स्ट सैलरी। आपकी अगर फर्स्ट सैलरी कम लग भी जाती, कम भी हो जाती है, फॉर गॉड से कभी ऐसा, तो आप प्रिपेयर करते रहो। अपनी नेक्स्ट जॉब चेंज करने में आप अपने स्किल के हिसाब से यू शुड डिमांड सैलरी। जब आप सैलरी नेगोशिएट करते, कई बार क्या होता है कतीश, मैंने देखा है कई लोगों को जस्ट बिकॉज उनका कॉलेज का शायद ब्रांड नेम उतना अच्छा नहीं है, या मे बी उन्होंने फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं करी, उनकी कई बार फर्स्ट जो जॉब होती है ना वो 3-4 लाख या 5 लाख की उसमें लग जाती है। तो फिर उन लोग लेकिन 1-2 साल बहुत अच्छे से सीखते हैं, कंपनी में जॉब करते हैं और उनका स्किल सेट लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन जब वो नेक्स्ट जॉब के लिए जाते हैं ना, तो इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में आपकी प्रीवियस सैलरी से कई कंपनी डिसाइड कर हाइक मिलता है, लेकिन ये बहुत ही गलत नोशन है। मेरे को लगता है यहाँ पे जो बच्चे हैं उनको खुद पे कॉन्फिडेंस रख के उनको ये समझाना चाहिए एचआर को या कंपनी को कि मेरी पिछली सैलरी फॉर वॉट एवर रीजन कम रह गई थी, लेकिन मेरा स्किल सेट इतना है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 14, 15, 18, 20 जो भी उस मार्केट में उस स्किल सेट के लिए सैलरी अप्रोप्रिएट है। तो बेसिकली मार्केट स्टैंडर्ड्स को मैच करो, रादर देन मेरे डरना नहीं चाहिए वहां पे, पुराने सैलरी पे मत जाओ। बिल्कुल, मतलब अगर जस्ट बिकॉज आप उस टाइम बीमार पड़ गए थे पहली जॉब के कारण, इसका मतलब ये थोड़ी है उस बीमारी के कारण आप
जिंदगी भर आप कम सैलरी में वो करेक्ट करोगे भाई। करेक्ट आपकी स्किल्स तो अच्छी है तो आपको बिल्कुल बिंदास होके कॉन्फिडेंस रख के सैलरी नेगोशिएट करनी चाहिए। करेक्ट। और सैलरी नेगोशिएशन ऐसे करना चाहिए, इस माइंडसेट से करना चाहिए कि मेरे को ये जॉब ज्वाइन करनी ही नहीं है। जब तक गॉट। आपका डिटैचमेंट नहीं रहेगा तब तक आप नेगोशिएट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसका हमेशा आप मतलब है डर के पलाश करेंगे। कि आप ये बोल रहे हो कि इवन लेट्स से कि ओके आईआईटीज में लेट्स से वन गेट अ वेरी गुड किक स्टार्ट राइट, बहुत ही अच्छा आप बिल्कुल मतलब रेस लाइन के सेम पोजीशन से स्टार्ट नहीं करते हो, क्योंकि बहुत सारे जो बिल्कुल वैसे कॉलेजेस आपने बताया कि मे बी ब्रांड अच्छा नहीं है या फिर दे डिडंट स्टार्ट वेल ड्यू टू सम रीजन, तो मे बी उनकी जॉब 3 lakhs 4 lakhs के अराउंड है, बट उन्हें फोकस करना चाहिए अपने अर्ली स्टार्टिंग ईयर्स में ओनली ऑन स्टडीज, ओनली ऑन देयर बेसिक्स, और जितना सीख सको बिल्कुल सीख लो, एंड देन गो बिल्कुल फॉर यू नो change the company, go for recompensation, go with market standard, बिल्कुल and बिल्कुल you will get there। मतलब ऐसा नहीं है यार कि जो बिल्कुल आईआईटी से बिल्कुल निकल गया है 6 साल में वो जहां पहुंच रहा है, you can also reach there in the same time, it's just बिल्कुल कि आप फॉर फोकस करो। आप, हाँ आप अपने पोटेंशियल और अपने चीजों को वैल्यू करोगे तभी करेक्ट सामने वाला करेगा और आपको उस लेवल पे लाएगा सैलरी के terms। मैं आपको गॉट इट। एनालॉजी देता हूँ। जैसे बॉलीवुड में क्या होता है, करेक्ट बॉलीवुड में कोई स्टार का बच्चा है, उसको करेक्ट एक किक स्टार्ट तो मिल जाता है, करेक्ट लेकिन कोई अगर मेहनत करके नॉन स्टार्टर भी आता है तो वो करेक्ट मेहनत करके 4-5 साल में उनके इक्वल या उनसे इक्वल ऊपर भी जा पहुंच ही जाएगा। सकता है। करेक्ट तो करेक्ट ट्रू। हाँ आईआईटी में हो आपको किक स्टार्ट भले मिल सकता है, लेकिन करेक्ट दूसरे कॉलेज के बच्चे भी, और आजकल तो कॉलेज क्या, आजकल लोग ऑब्वियसली ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज हो गई है, ट्रू। बच्चे खुद से भी इतना कुछ सीख जाते हैं। तो करेक्ट मेरे ख्याल से स्काई इज द लिमिट, ऐसा कुछ रहा नहीं आजकल जिससे आप अगर सीखना चाहते हो तो नहीं सीख सकते right? खुद को awesome आपको खुद के पोटेंशियल की वैल्यू करनी है, एंड उस हिसाब से आपको सैलरी और कंपनी सेलेक्ट करनी है। awesome cool पलाश। कूल। बिल्कुल अब ये वीडियो काफी लंबा स्ट्रेच कर रहा है, इट जस्ट कि आई विल ट्राई टू नाउ समराइज है ना, आपका जस्ट बिल्कुल आपके पाथ बिल्कुल को हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। तो यू गॉट इनटू माइक्रोसॉफ्ट है ना, बिल्कुल एंड सो माइक्रोसॉफ्ट में यू स्टार्टेड योर जर्नी इन 2013 राइट, और फिर बिल्कुल इसके बाद आपका जर्नी कैसा था, हाउ डिड इट गो ऑन एंड वेयर आर यू राइट नाउ, ये अगर हम अपने स्टूडेंट्स को बता सके। और ये हमें बिल्कुल ये सो चीज स्टूडेंट्स को जरूर याद रखना है कि पलाश स्टार्टेड विथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ हिज बिल्कुल मास्टर्स इन कम्युनिकेशन एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, ही इज नॉट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। बिल्कुल तो ये बिल्कुल इसलिए हम इम्फेसिस कर रहे हैं यहाँ पे पलाश, क्योंकि बहुत लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं कि यार मुझे नई ब्रांच मिली है, यार कंप्यूटर साइंस वाले को जॉब लग गई है, मैं क्या करूँ। ये काइंड ऑफ उनके लिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि इवन डजंट मैटर, अगर आपका इंटरेस्ट है तो यू कैन यू नो क्रैक एनीथिंग राइट। बिल्कुल बिल्कुल फॉर श्योर 100%। तो माइक्रोसॉफ्ट गए वहां पे, मतलब काफी अच्छी कंपनी है, काफी करेक्ट ध्यान रखा जाता है फ्रेशर्स को ऑनबोर्ड होने में। जैसे मैं बताया था आईआईटी में आपको एक होमली फील कराने के लिए बहुत एफर्ट दिए जाते हैं, करेक्ट वैसे ही किसी भी कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हो अच्छी कंपनी में वो सिमिलर एफर्ट दिए जाते हैं। आपका ओरिएंटेशन होता है, ओके आपके डिफरेंट कंपनी के कल्चर के बारे में बताया जाता है, आपके काम के बारे में बताया जाता है, आपकी टीम से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। फिर ओके। डिपेंडिंग ऑन आप किस टीम में ज्वाइन कर रहे हो, हर टीम का एक अलग ट्रेनिंग पीरियड होता है। ठीक है, इट प्लस कैन, यहाँ पे हम एक हाँ चीज पूछना चाहेंगे, सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे कि अगर आप अभी तक बॉम्बे में थे राइट, तो आप अब अपने होम टाउन जाओगे ग्रेजुएट होके और फिर उसके बाद जॉब में जाओगे राइट, तो ये यू नो काइंड ऑफ एक मूवमेंट है राइट। आप अभी तक कॉलेज में थे और अब माइक्रोसॉफ्ट जा रहे हो, न्यू सिटी है, तो वहां पे कंपनी किस तरीके से कंफर्ट देती है कि सो दैट व्हेन यू कम हियर आपको बहुत सारा एक साथ नहीं करना पड़े, कंपनी की भी चीजें सीखनी है, साथ ही साथ न्यू प्लेस है वहां पे घर ढूंढो सब कुछ करो। सो does company provide some sort of benefits there? Yes, good question. So most of the companies take care of entire relocation of yours. Okay. मतलब आपके टिकट बुक करने से लेकर, so Wow. एग्जैक्ट तरीका कैन वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनीज Correct. बोलती है आप करा लो हम रिम्बर्स कर देंगे, कुछ Okay. कंपनीज खुद से टिकट्स करा देती है। Okay. 1 महीना के लिए या 15 दिन के लिए या 1.5 महीने के लिए आपको एक एकोमोडेशन दे देती है, आइदर होटल Okay. में या सर्विस अपार्टमेंट में या कंपनी का खुद का क्वार्टर्स होता है, ताकि Okay. आपको एक नई सिटी में शिफ्ट होना है, एक इटसेल्फ अपने आप में एक टास्क है, बड़ा Correct. मेंटल टास्क है। Correct. उसके साथ साथ अगर आपको घर भी ढूंढना पड़े, आपको ट्रैवल भी वो करना पड़े, तो वो Correct. एक बहुत ही 1-2 महीना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। Okay. तो वो कंपनी बैकग्राउंड चीजें कंपनी पूरा मैनेज कर लेती है, आपके Wow. रुकने का, खाने का, कम्यूट, आपका रिलोकेशन का, ट्रैवलिंग
आपको बस फोकस करना है ऑफिस के ओरिएंटेशन में, ऑफिस की ट्रेनिंग में, टीम के साथ जेलअप होने में, इन्वॉल्व होने। तो वो बहुत अच्छा था। एक डेढ़ महीना कंपनी ने पूरा टेक केयर कर रखा था। तो आवर एंटायर फोकस वाज ओरिएंटेशन में और फिर टीम के साथ इन्वॉल्व होके काम चालू करने में। और हमारे साथ अच्छा हुआ था कि बहुत सारे लोग साथ में ज्वाइन किए थे, तो एक बहुत आउट ऑफ द प्लेस भी फील नहीं होता था। बहुत सारे लोग कॉलेज में से एक साथ ज्वाइन किए थे, तो वी कुड ऑल रिलेट टू ईच अदर कि क्या चल रहा है। गॉट इट अंडरस्टूड। तो माइक्रोसॉफ्ट में आपका कितना दिन यू स्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट? हाँ, तो मैं 2 साल था माइक्रोसॉफ्ट में। विंडोज नेटवर्किंग टीम में था। तो जो आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें जो इंटरनेट और वीपीएन से रिलेटेड चीजें होती है, बेसिकली उस टीम में था। उस टीम में मैं दो साल तक था। और फिर मैंने 2015 में माइक्रोसॉफ्ट छोड़ा। थोड़े टाइम ब्रेक लेके देन आई शिफ्टेड टू पुणे। पुणे में माइक्रोसॉफ्ट वाज इन हैदराबाद, इज इट? माइक्रोसॉफ्ट वाज इन हैदराबाद। माइक्रोसॉफ्ट का जो मेन डेवलपमेंट सेंटर है वो हैदराबाद में है, एंड सेकंड डेवलपमेंट सेंटर बैंगलोर में है। कुछ टीम्स बैंगलोर में बैठती हैं एंड मोस्ट ऑफ द टीम्स फिर हैदराबाद में बैठती है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। काफी अच्छी कंपनीज है, ग्रो करने के लिए आपको बहुत ही प्लेटफॉर्म, बहुत सा प्लेटफॉर्म देती है। और आप सिमिलरली जैसा आईआईटी में था कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजें स्विच कर सकते हो, वैसा ही माइक्रोसॉफ्ट के अंदर था कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से यू कैन स्विच टीम्स इंटरनली। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी है, लोग बहुत ज्यादा करते हैं उसको यूटिलाइज। फिर लेकिन मैंने 2015 में मैंने छोड़ा माइक्रोसॉफ्ट और फिर पुणे शिफ्ट हुआ। पुणे में एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाता हूँ मैं, techlift.in करके, टेकलिफ्ट टेक्नोलॉजी। वो है, हाँ, तो वो टेकलिफ्ट है, राइट। तो उसमें वी डू अ बंच ऑफ वेरियस थिंग्स, ऑल सॉफ्टवेयर रिलेटेड मोस्टली। तो वो है, और उसके अलावा कुछ दूसरी चीजें चलते रहती है इधर उधर, बट हाँ, मोर और लेस दैट इज व्हाट आई डू राइट नाउ। या सो फॉर पास्ट 6 years you are running your own entrepreneurship. Wow, nice. Yes. So that is where I am right now. Awesome. Yes. Nice, Palash, है ना? तो at the end do you want to give suggestion to our students कि उनके लिए एक कोई मोटो या मंत्र which आप अपनी जर्नी से, क्योंकि अब आप सिर्फ कॉलेज नहीं है, आपने अराउंड 8 years एक्सपीरियंस भी हो चुका है आपको इंडस्ट्री में, you have met so many folks, you have been into corporate life, you are doing your startup, है ना? तो हमारे स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको कुछ बताना चाहोगे कि ये एक मूल मंत्र है, स्टिक टू इट एंड दैट्स इट, यू विल बी वेल डन इन योर लाइफ? आई थिंक मैं एक जो अगर एक सेंटेंस में सिंपलीफाई करना है तो मैं बोलूंगा, रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत ज्यादा अपनी प्रिपरेशन या अपना टाइम स्पेंड मत करो। ठीक है, अपना चीजों को बेटर करने में, नॉलेज को बेटर करने में, प्रोसेस को बेटर करने में फोकस करो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। ऑल्दो बहुत क्लीशे लग रहा होगा कि ये बहुत लोग बोलते हैं सिमिलर टाइप की चीजें, बट ये ट्रू है। मतलब अगर जैसे कि मैं अगर अपने कॉलेज के फर्स्ट सेकेंड ईयर से फोकस नहीं किया होता अपने इंटरेस्ट को डेवलप करने में, तो आई थिंक मेरे लिए प्लेटफॉर्म उतना बिल्ड नहीं होता। एक एक प्लेटफॉर्म जो बिल्ड हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने चीजों को इन डेप्थ सीखा है, और रिजल्ट ये नहीं सोचा था कि माइक्रोसॉफ्ट में जॉब चाहिए शुरू से। वो होता चला गया, राइट। अगर मैं ये सोच के बैठता, डे 1 पे भी जॉब चाहिए कि नहीं चाहिए ये सोच के मत, नहीं सोच के चलो, ये था कि भाई चलो आईआईटी में आए, कुछ ना कुछ जॉब लग जाएगी, ये कॉन्फिडेंस था कि भाई इतना तो हो जाएगा कि एक अच्छी लिविंग हो जाएगी। बट ये नहीं सोचा था कि आप सॉफ्टवेयर की जॉब चाहिए या माइक्रोसॉफ्ट में चाहिए या इंडिया में चाहिए, बाहर, ये सब कुछ नहीं था। आईआईटी में एंजॉय 4 साल 5 साल एंजॉय करो, या किसी भी कॉलेज में हो एंजॉय करो, चीजों को एक्सप्लोर करो, फ्रेंडशिप बनाओ, जितनी चीजें हो सकती है ट्रैवल करो। मतलब आई थिंक वो बेस्ट टाइम है, वैसा टाइम कभी नहीं मिलेगा। और आपको देखना, आपकी चीजें खुद डेवलप होती चली जाएगी, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस डेवलप हो रहे हैं, आपके नॉलेज बढ़ रहा है, पर्सपेक्टिव बेटर हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं हर चीज का फायदा मिलता है। करेक्ट, मेक सेंस। यस, आई थिंक तो मैं यही बोलूंगा कि रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहो, प्रोसेस को अच्छा करो, चीजों को इम्प्रूव करो, नॉलेज को बढ़ाओ। ठीक है पलाश, थैंक्स। इनफैक्ट काफ़ी बढ़िया सेशन था ये, है ना? आपके साथ मिलके बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आई होप हमारे स्टूडेंट्स को भी ये
पॉडकास्ट वीडियो जरूर पसंद आएगा वो। और उन्हें कोई भी क्वेश्चंस होगा हम डेफिनेटली आपको रीच आउट करेंगे अगेन, ताकि एक अगर उनके बहुत सारे डाउट्स है और उन्हें आईआईटी बॉम्बे के बारे में जाना है, या फिर होते हैं कि बहुत सारे लोग बिल्कुल आईआईटी बॉम्बे में जाना चाहते हैं एंड दे जस्ट वांट टू टॉक टू वन ऑफ द सीनियर्स कि आप बताओ बिल्कुल क्या बिल्कुल करें, है ना, बिल्कुल तो विल अगेन रीचिंग आउट टू यू, है ना। एंड बिल्कुल, नो थैंक्स प्रॉब्लम। पलाश, है ना। आप मोस्ट वेलकम। आप चाहे तो मेरा ईमेल आईडी वगैरह भी डाल सकते हैं, अगर कुछ किसी डेफिनेटली। बच्चे को कोई भी ईमेल में रीच आउट करके कुछ भी सजेशन चाहिए हो, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, नो इशू। गॉट इट, कूल। Thanks, राइट, Palash. Thank ओके, you for your time. It was great talking to मोस्ट you. वेलकम Katish, थैंक्स फॉर हैविंग मी। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू टू एंड sharing my experience till now. Cool.